draw a chart wherein we can jot down our key points. For example, what could be the key partners which are helpful in our business, what could be the key activities that we can, for example, perform, the key resources that we could trap, then the channels and the cost structures. So it was a wonderful presentation from ma'am, and that is why I look forward to these particular sessions. Fantastic. Thank you, Bhavna ji. Any particular takeaway that you think that would help you in your immediate, the action plan? Ma'am, actually, I was always confused about the different kind of value propositions. For example, I could, think about my journey or my, my business. So now, this has helped me to start thinking about different avenues which I can start trapping, which different avenues where I can, look forward for. And so I'm not yet done, but of course it was very stimulating, and and I think I've started thinking from a different perspective also. Fantastic. Now, before I move on, we welcome Dharmendra Bhai Pandya from CED. We welcome you, Dharmendra Bhai. Kem છો? એકદમ મજામાં. આશા રાખું છું મારો અવાજ પહોંચી રહ્યો હોય બધાને. I guess loud and clear from my end. Everybody. Okay. બાકીના પાર્ટિસિપન્ટ જરા yes in chat box as હા બાકીના પાર્ટિસિપન્ટ જરા ચેક કરી લેજો ખાસ કેમ કે Zoom મીટિંગમાં થોડું જોઈ લેવું સારું. Chat box please write. Good morning to all. બધાને સંભળાય છે? And everybody is welcoming you, sir. You can check your chat box. Okay. Thank you so much. Thank you. ખૂબ આભાર બહેનો. તો આપણે ચાલુ કરીએ સેશન આજનું. મને એક જ મિનિટ આપી દો ધર્મેન્દ્રભાઈ. હા. I think we are expecting one more person. હા કશો વાંધો નહીં. No જે મેં શનિવારે કર્યું હતું સો બિઝનેસ કેનવસ મોડેલિંગ અને એના જે આખા જે એસ્પેક્ટ્સ છે તો એના વિશે મેં પૂછી રહ્યા હતા બહેનોને કે આપણે શું શીખ્યા અને શું ઇમિડિયેટલી એ લોકો ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકશે. Before I move on, Dharmendra bhai, we have to go in Hindi because हमारे साथ बहुत बहनें जुड़ी हुई हैं जो not only from गुजरात जो बाहर से हैं. Okay, fine. गुजरात से तो है ही है, अहमदाबाद से तो है ही है, बट हमारे साथ बैंगलोर, चंडीगढ़, दिल्ली वगैरह से बहनें जुड़ी हुई है. So हम लोग हिंदी में जाएंगे. Sorry, I started in Gujarati because धर्मेंद्र भाई के साथ मेरा कॉन्वर्सेशन हमेशा गुजराती में रहता है तो एक वो फ्लो में आ जाता है. No issue. Okay, fantastic. Thank you. Anybody quickly want to take a minute to let us know that how was Saturday session and any particular thing which you have you are kind of implementing in your immediate action plan? Anybody? Yeah, Dharna, please. Just a quick recap on the approach itself on what this business model canvas is. Yes, good morning to all. Am I audible? Yes. Loud and clear, Dharna. Yeah, thank you. Yeah, it was a really helpful session for me, especially on customer relationship, how to maintain, sustain. All points were very good. Especially, we can immediately take action on how to build up and how to maintain customer relationship. So it was indeed a good session. Thank you so much. Anybody else? I want to kind of have someone mentioning what are those 7-8 components of a business model canvas. What were those 7-8 boxes that we discussed in the canvas on Saturday? Hi Piali, this is Monica. I'm sorry I'll not be able to use my video, but if it is okay, I can probably come in. Please. Thank you.
Starting from, how the session was, I think it was a great start for people who want to start their business. It was real insightful. People like me who are already, into the business, still it was very helpful because we were doing things in pieces, which I think this model helped us to entirely put that jigsaw puzzle together, and it gives a more clarity of the business. I had a query, but due to short of time, I think we couldn't discuss that. What else? I mean, how do we replicate, or what is the next stage of implementing this model? Now, this gives a business overview, but it is more towards that. How do we see the challenges of the business part of it, and the business development part of it? If there is anything which is in correlation further to this, we would love to hear that. Now, coming to the key 9 elements that was discussed in the business model canvas was, number 1 was key partners. Very important to define and identify who are your key partners, so they're always in your focus. And then the key activities. So a lot of things goes on coordination. So your partners, your key activities will be in sync with each other. And you will slowly and gradually, when you are doing your business model canvassing, it is quite relevant, and you can see those effects. Third one was key resources. Then it was, I think, customer relationship. Yes. And then the channels through which the business is executed. What is your value proposition, your USP? That was a very important element of it. Customer segment, which customer segment do you want to? I think that is really a big one, because the story of Mr. Biyani has it's really printed in my mind. It was really well explained by Dr. Patel. So customer segment, cost structure, revenue streams. I were the 9 elements that we discussed. Thank you. Absolutely. Thank you so much, Monica. As you rightly put, all the key components. And, back to the first question that you had on what's next, or how we are bringing all of these things together. I think tomorrow's session, when we talk about the business strategy, so overall business strategy actually includes from, the planning to, about the efficiency part of it, resources part of it, control part of it. All of these things come together in a business strategy, and that's the reason we had decided to keep that session after these 2 topics. So I think tomorrow you will get a much more clarification on the next steps of this overall cycle of a startup, on how you launch. Great, thank you so much. Yeah, thank you so much, Monica. And I think we have Mr. Dharmendra Pandya from CED with us. So I think it's the time we take the opportunity. So just probably again reiterating on what Tejal was mentioning. So CED, of course, plays an extremely important role in any startup's journey. And 2 things especially on how you register your startup, and what are the different kind of opportunities one can have if you were to look for some funds. And the funds don't have to be something really big. It could be small, there could be loans, there could be grants, there could be specific schemes for entrepreneurs. Even there could be some special, I'm assuming, schemes we have even for women entrepreneurs these days. It could be from government, it could be otherwise. And if you have any questions in understanding all of this, Dharmendra is someone who is probably an institution in himself and will be able to respond to all your questions very well. So if we are okay, and Tejal, if you are fine, we can start with and over to Dharmendra bhai. Absolutely. Thank you, Piyali. Thank you so very much. जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले आप सबका स्वागत है. I hope you had a wonderful weekend, and lovely to have you all back on this lovely session. CED के साथ मेरा पुराना नाता है. पिछले 2-2.5 साल से हम लोग sessions कर रहे हैं. हमारी to share one case study, there was group which was trained by purely CED, and we were just a program partner. Now there were about 25 participants, and out of 25, 3 participants, वो लोग they came together. साथ में उन्होंने एक business शुरू किया, रोटी मशीन खरीद के रोटी बनाने का. One of the participants, उसके कुछ रिश्तेदार ऑस्ट्रेलिया थे, and let me tell you guys,
now they are exporting rotis to Australia. काफी उनका पूरा जो सीडी जो है आपको पूरी तरह से मदद कर रहा है। मेरे पास तो ये धर्मेंद्र जी के पास तो आई थिंक बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। सीडी बहुत अच्छा काम कर रहा है एंड एट व्हाट कॉस्ट। आज अगर हम IIM की बात कर रहे हैं या तो हम कोई भी मैनेजमेंट स्कूल की बात कर रहे हैं, आप जिस हिसाब से पैसे भर के आपका जो पूरा ट्रेनिंग होता है, ऑफ कोर्स आई एम नॉट हियर टू कंपेयर एनीथिंग, इट हैज इट्स ओन वैल्यू, इट हैज इट्स ओन स्टेटस, बट अगर आप सीईटी के कोई भी बहुत सारे इनके कोर्सेज हैं, आई एम श्योर धर्मेंद्र भाई विल टेक अस थ्रू दैट, बट आप अटेंड करेंगे, उनके एमपैनल ट्रेनर्स हैं, वो आपको एटलीस्ट बेसिक समझ दे देते हैं। अब उस पे गहराई में जाना, दैट्स योर जॉब, you know. So at what cost you are getting trained? And the second best part about CED is that you get certified. अब CED का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो everybody will look at you from the different angle. अगर आप लोन के लिए जा रहे हैं, अगर आपको रजिस्टर करवाना है अपना बिजनेस, या तो अगर आपको जमीन खरीदनी है, या तो आपको कोई मशीनरी चाहिए, आप सबके लिए सब्सिडी वगैरह, इन सब में आपको सीईडी का सर्टिफिकेट ऑलवेज हेल्प्स। मेरे से ज्यादा धर्मेंद्र भाई ज्यादा अच्छी तरह से सीईडी की बात कर पाएंगे। मैं अपना एक जो रिश्ता है सीईडी के साथ वो बयान कर रही थी। सो धर्मेंद्र भाई, ओवर टू यू। आप अपने बारे में बताइए, आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस, and then maybe we can move on to CED. Dharmendra bhai, over to you. Good morning to all of you, all women participants. Very warm welcome to you on behalf of the Center for Entrepreneurship Development, a Government of Gujarat Enterprise. तो आशा रखता हूँ कि मेरा आवाज सबको पहुंच रहा है। Yes. Am I audible to you, right? ना? Yes, yes. Okay. So दिवाली के बाद हम I think पहली बार ऐसा एक प्रोग्राम कर रहे हैं, तो सबने मिठाई वगैरह खाई होगी और खिलाई होगी, मैं आशा रखता हूँ। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, तेजल बहन, पियाली बहन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा जो सेशन है। द सेशन इज फॉर इंट्रोडक्शन ओवरव्यू ऑफ सीईडी, द सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, दैट इज बेसिकली अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा आज हम देखेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप कैरेक्टरिस्टिक और उसके स्टेप्स, जो सिस्टमेटिक हम जो बिजनेस कर रहे हैं तो सिस्टमेटिक कैसे जाना है। एज आई एम गोइंग टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, ओके, तो मेरा जर्नी कैसे रहेगा, मैं कैसे स्टेप उठाऊं, मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं, मैं किसको मिलूं, कौन कौन से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो मेरे काम के हैं, और कौन कौन से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो है वहां से मुझे फंड मिलेगा, मुझे लोकेशन के लिए मुझे लैंड मिलेगा। तो ये सब पूरा हम आज 1 by 1 देखेंगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो एंटरप्रेन्योरल स्टेप्स जो बोलते हैं, दैट इज वेरी एसेंशियल फॉर यू। उसके बाद हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मतलब एज एन वुमन एंटरप्रेन्योर हमारे पास क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, और लास्ट में हम देखेंगे गवर्नमेंट के स्कीम्स। जो भी हमारे वुमन एंटरप्रेन्योर है उनके लिए गवर्नमेंट में कौन कौन सी स्कीम्स अवेलेबल है, तो वो हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करेंगे 1 by 1। पहले सीईडी से शुरू करें। तो मेरा नाम है धर्मेंद्र पंड्या, मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ एंड आई एम टेकिंग केयर ऑफ अहमदाबाद रीजन। अहमदाबाद रीजन में हमारे टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, तो वो मैं पूरा देखता हूँ। हमारा जो ऑफिस है ये आपने देखा होगा बचत भवन में, रिलीफ रोड पे हमारा ऑफिस बेस्ड है, और वहां से हम पूरे अहमदाबाद का जो एरिया है वो हम देखते हैं। तो वी आर ऑर्गेनाइजिंग वेरियस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब क्या, कि किसी को भी एंटरप्रेन्योर बनना है तो एंटरप्रेन्योर कैसे बने, एंटरप्रेन्योर के स्टेप्स क्या रहते हैं, एंटरप्रेन्योर के जो वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेमिनार, वर्कशॉप आते हैं वो हम अरेंज करते हैं। इसके अलावा सीडी का काम है ये कि वेरियस इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जो है, बराबर, वेरियस जो इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह है, जैसे कि टाइज वन ऑफ देम, ओके। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके हम इंडस्ट्रियलिस्ट फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर के लिए हम प्रोग्राम वी आर ऑर्गेनाइजिंग। और प्रोग्राम्स वेरियस टॉपिक्स पे डिमांड पे डिपेंड करता है, आपका डिमांड कैसा है, कैसा ग्रुप है, और कैसे कौन कौन से सब्जेक्ट हम इंक्लूड करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से हम पूरा प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। इसके अलावा सीईडी का जो हमारा जो एस्टेब्लिशमेंट है 1979 में हुआ था, तो हमारा जो डिपार्टमेंट है वो 40 साल से भी पुराना है।
तो हमारा मेन मोटो ये है, 1979 में जो सीडी का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, स्थापना हुई थी, तो उसका मेन हमारा जो मोटो यही है कि हम लोगों को जॉब गिवर बनाना चाहते हैं, जॉब सीकर नहीं। मतलब जॉब सीकर नहीं बनाना, जॉब गिवर बनाना है कि आपको एंटरप्रेन्योर बनना है। तो एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या है वो पहले तो हम देखेंगे, बराबर। तो क्योंकि सीडी का काम ही यही है कि वी आर ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या है? आपने अभी मैडम ने बताया प्रोग्राम के स्टार्टिंग में कि काफी सारा एक कस्टमर रिलेशन का और काफी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेनिंग अभी ऑलरेडी सेशन हो ही गया है। तो आपको एंटरप्रेन्योर के बारे में तो पता हो। फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच वर्ड में से ये आया था एंटरप्रेन्योर। पहले के जमाने में क्या था कि ब्रिटिश जमाने में पहले जो साहसिक होता था उसको एडवेंचरर वर्ड यूज होते थे, एडवेंचरर। तो उसके हिसाब से ये एंटरप्रेन्योर जो फ्रेंच वर्ड है, हमने एंटरप्रेन्योर वर्ड रखा। तो गुजराती में हम क्या बोलते हैं? उद्योग साहसिक। हिंदी में भी वही होगा, उद्योग साहसिक। तो मतलब उद्योग साहसिक मतलब क्या? एंटरप्रेन्योर क्या होता है? तो एंटरप्रेन्योर वो होता है कि जो अपने दम पे, अपने खुद के दम पे वो बिजनेस शुरू करे, उद्योग शुरू करे, इंडस्ट्री शुरू करे, और एक ऐसी मेंटालिटी के साथ, एक कंसेप्ट के साथ कि मैं ये बिजनेस शुरू कर रहा हूं तो मैं दूसरे 2 से 4 लोगों को मैं क्या दूंगा? एम्प्लॉयमेंट दूंगा। तो एंटरप्रेन्योर के अंदर एक वेलफेयर एक्टिविटी भी आती है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेसमैन। आप देखिए, तो एंटरप्रेन्योर के अंदर एक सेवा भावना आती है। एंटरप्रेन्योर मतलब एक सेवा भावना। सेवा भावना मतलब कैसी? कि आज मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूं तो मैं एक हेतु, एक एम के साथ मैं बिजनेस कर रहा हूं कि मैं मेरे बिजनेस में दूसरे 2 से 4 लोगों को मैं क्या दूंगा? रोजगारी दूंगा, एम्प्लॉयमेंट दूंगा। तो एंटरप्रेन्योर का मतलब यही है कि कोई भी बंदा अपने खुद के दम पे बिजनेस शुरू करे, बराबर। वो कोई भी बिजनेस हो, हम बिजनेस के डिफरेंट टाइप्स में भी हम जाएंगे। कोई भी बिजनेस शुरू करे, सर्विस सेक्टर, ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी बिजनेस, और वो बिजनेस अपने दम पे शुरू करे और दूसरे 2 से 4 लोगों को रोजगारी भी दे, इसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। और एंटरप्रेन्योर बनने की जो प्रोसेस है, एंटरप्रेन्योर बनने की जो प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया जो है, उसको हम बोलेंगे एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये हमने देखा कि एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप, और अभी हम देखेंगे एंटरप्रेन्योरल स्टेप्स। मैं थोड़ा आगे जा रहा हूं, वन बाय वन हम स्टेप्स भी देखेंगे कि एंटरप्रेन्योर के पर्टिकुलर स्टेप्स कौन से हैं। अभी हम बिजनेस शुरू करना है, बिजनेस करना है, तो उसके सिस्टमेटिक स्टेप होते हैं। ऐसा नहीं कि भी नींद में से जागे आइडिया आ गया, बिजनेस शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता। बिजनेस शुरू करने के लिए एक सिस्टमेटिक स्टेप होते हैं, सिस्टमेटिक उसकी प्रोसेस होती है, एक वेल डिफाइंड प्रोफेशनल स्टेप्स होते हैं। तो उसके हिसाब से हमको आगे जाना है। तो फ्रेंड्स, तो हमने देखा सीडी की एक्टिविटी हमने देखी। मैं सीडी में एज एन असिस्टेंट मैनेजर लास्ट टोटल मेरा 12 साल का गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस है। मैंने इंजीनियरिंग प्लस एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्स किया हुआ है मैंने। और एज एन असिस्टेंट मैनेजर मेरा पूरा जो एक्टिविटी रहता है कि ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम अरेंज करना, उसको मोटिवेट करना, उसका मॉनिटरिंग करना, उसका रिकॉर्डिंग करना, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस करना। तो ये पूरा काम है। और हमारा सीडी का जो रोल है वो ओनली ट्रेनिंग से लिमिटेड नहीं है, ट्रेनिंग से भी ज्यादा, कि ट्रेनिंग होने के बाद भी जो पर्टिकुलर ट्रेनी उन्होंने इंडीड यानी कि रियली में बिजनेस शुरू किया कि नहीं, वो भी देखना हमारा काम है। मतलब ट्रेनिंग के बाद पोस्ट ट्रेनिंग सपोर्ट का भी हम काम सीडी कर रहे हैं। तो वन बाय वन हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर से एक बार कि एंटरप्रेन्योर की बात हम कर रहे थे कि एंटरप्रेन्योर मतलब अपने दम पे बिजनेस शुरू करे और दूसरों को भी रोजगारी दे, उसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। ये पूरी प्रोसेस जो है एंटरप्रेन्योर बनने की, उसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। और आगे हम जाएंगे कि हमारा जो मेन आज का जो टॉपिक है, एंटरप्रेन्योरल स्टेप्स, बिजनेस अपॉर्चुनिटी और गवर्नमेंट स्कीम्स। तो पहले हम शुरू करेंगे फ्रेंड्स एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर स्टेप्स। तो आपके पास अगर जो डायरी और पेन है तो आप जो नोट डाउन कर दीजिए। मैं जो भी आपको पॉइंट्स बता रहा हूं, आप जरा वन बाय वन वो पॉइंट नोट डाउन करते रहिए। तो एंटरप्रेन्योरल स्टेप्स में मुझे कोई भी बिजनेस शुरू करना है तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? मुझे बिजनेस कोई भी शुरू करना है तो सबसे पहला स्टेप क्या है? अगर आप कोई बता सकते हो तो आप बताइए। बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? राजू मैडम ने बोला रिसर्च। ओके, बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए फ्रेंड्स? यस, वेरी नाइस। धरणा मैडम ने बोला कि आइडिया, वेरी नाइस। तो बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले हमारे पास चाहिए आइडिया, मतलब कंसेप्ट।
मतलब सोच, सही है ना, कि बिजनेस शुरू करना है कि मुझे कौन सा बिजनेस शुरू करना है, मुझे फूड प्रोसेसिंग का करना है, मुझे एग्रो प्रोसेसिंग का करना है, मुझे मैन्युफैक्चरिंग करना है, मुझे ट्रेडिंग करना है, बराबर। तो बिजनेस एंटरप्रेन्योरल स्टेप्स का सबसे पहला स्टेप है आइडिया। आज 1979 में सरकार को एक आइडिया आया, सरकार ने एक सोच रखा कि हम लोगों को बिजनेस मतलब करने वाले, बराबर, बिजनेस करने वाले मतलब पूरा बिजनेस हमको करना है, हमको जॉब वाले नहीं, लेकिन बिजनेस करने वाले, बिजनेस दूसरे को जॉब देने वाले बंदे हमको बनाने हैं। तो उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप कांसेप्ट को ध्यान में रखते हुए ये सीडी का स्थापना किया, 1979 में एस्टेब्लिशमेंट किया। तो एंटरप्रेन्योरल स्टेप का सबसे पहला जो स्टेप है वो है आइडिया, कंसेप्ट और सोच। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है बिजनेस शुरू करने का। फ्रेंड्स, उसके बाद कंसेप्ट के बाद, आइडिया के बाद सेकंड स्टेप कौन सा होगा, आप बताइए जरा। एंटरप्रेन्योर जो स्टेप है उसका पहला स्टेप है आइडिया। तो आइडिया के बाद कौन सा स्टेप आएगा? यस, आचार्य मैडम ने बोला प्लानिंग, प्लान, वेरी नाइस, प्लानिंग, ब्लूप्रिंट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो बेसिकली जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, हमारे पास आइडिया आ गया, हमारे दिमाग में एक आइडिया आ गया कि भी मुझे पर्टिकुलर एक बिजनेस करना है, तो ऐसा एक आइडिया मुझे मगज में, दिमाग में मेरा आ गया। तो अभी मुझे क्या करना है, अभी मैं एक आइडिया मेरे दिमाग में आ गया और आइडिया लेके मैं डायरेक्ट बैंक में जाऊंगा, कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जो लोन इंस्टीट्यूशन जो लोन देती है, फाइनेंस देती है, तो वहां पे जाऊंगा और मैं मैनेजर से मिलूंगा कि सर मेरे दिमाग में एक अच्छा सा आइडिया आया है, आप मुझे लोन देंगे, आप मुझे पैसे देंगे? तो कोई अपने को पैसे देगा? ओके, नहीं देगा ना। तो उसके लिए जो सेकंड स्टेप हमारा है, दैट इज प्लानिंग, कंसेप्ट डेवलपमेंट। हमारे दिमाग में जो हमारा कंसेप्ट है, सोच है, आइडिया जो आया है, उसको हमको पेपर में उतारना है, ठीक है ना, प्लानिंग करना है। उसको क्या बोलते हैं? कंसेप्ट डेवलपमेंट, मतलब प्लानिंग। हम हमारे बिजनेस की भाषा में क्या बोलेंगे? प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है ना, कि बिजनेस शुरू करना है, लेकिन बिजनेस का पूरा कुंडली तो होना चाहिए ना। तो बिजनेस की जो कुंडली, आइडिया हमको आ गया, आइडिया को हमने पेपर पे उतारा, उसको बोलते हैं कंसेप्ट डेवलपमेंट, प्लानिंग, बराबर, या फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो सीईडी की जो ट्रेनिंग होती है, हम उसमें हाउ टू प्रिपेयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाए, वो भी हम उनको समझाते हैं। आपको भी ग्रुप में से किसी को भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आता है। आपके पास कोई आइडिया है, जैसे कि हमारे साथ फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन दोनों एंटरप्रेन्योर जुड़े होंगे, तो जैसे कि फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करने वाले होंगे, उनके पास कुछ आइडिया होगा, लेकिन वो आइडिया उनको पेपर पर उतारने के लिए उनके पास कोई कंसेप्चुअल जो टेम्पलेट जैसा आता है, बिजनेस टेम्पलेट, जिसको हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलते हैं, उसका स्केलेटन, एक फॉर्मेट मेरे पास है। आपको किसी को भी चाहिए होगा तो मैं आपको ईमेल में सेंड कर दूंगा। तो उसके बोलते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो आइडिया हमारे पास आ गया, कंसेप्ट हमारे पास आ गया, सोच हमारे पास आ गया बिजनेस का कि भी ये करना है। उसके बाद हम करेंगे प्लानिंग, कंसेप्ट डेवलपमेंट, उसको बोलते हैं। ओके, आई विल डेफिनेटली शेयर टू यू मोनिका जी। ओके, तो प्रोग्राम के बाद, ये सेशन खत्म होने के बाद मैं आपको मेरा ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सब कुछ दूंगा, तो उसमें मैं आपको शेयर करूंगा। तो अभी हम सेकंड स्टेप हमारा जो है, दैट इज प्लानिंग, कंसेप्ट डेवलपमेंट। तो ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, यू प्लीज नोट डाउन इन योर डायरी, इन योर नोटबुक, कि एंटरप्रेन्योरल स्टेप का फर्स्ट स्टेप है हमारा आइडिया, कंसेप्ट, सोच। हमारा जो सेकंड स्टेप है, दैट इज प्लानिंग, कंसेप्ट डेवलपमेंट। लिख लिया सबने? प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मैं फॉर्मेट आपको दूंगा, ठीक है। और इसके आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो थर्ड स्टेप कौन सा हो सकता है? ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स प्लीज लेट मी नो, थर्ड स्टेप कौन सा हो सकता है? ओके, फिनांस लिखा, फंड लिखा। हमारे फंड की बात एक अच्छी है, हम जहां भी ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, तो हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स हो, वो पहले ऐसा बोलते हैं कि सर फंड दे दो, बाकी बिजनेस तो हम कर लेंगे, आपकी जरूरत नहीं है ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मतलब फंड आपने बताया, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ओके, रिसोर्सेज, यस, वेरी नाइस। राजवी जी के लिए एक तालियां हो जाए। राजवी जी ने बोला रिसोर्सेज। तो ऑल ऑफ यू प्लीज नोट डाउन, एंटरप्रेन्योरल स्टेप का जो थर्ड स्टेप है, एंटरप्रेन्योरल स्टेप का जो थर्ड स्टेप है, वो है रिसोर्सेस। लिखिए, ऑल ऑफ यू प्लीज नोट डाउन, रिसोर्सिंग। अब रिसोर्सेज मतलब क्या?
उसको हिंदी में गुजराती में स्रोत बोलते हैं। स्रोत मतलब कहाँ से आएगा, ये कहाँ से आएगा, स्रोत बोलते हैं उसको। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर स्टेप का जो इम्पोर्टेंट थर्ड स्टेप है दैट इज रिसोर्सेस। ओके, रिसोर्सेस मतलब स्रोत, हम कहाँ से लाएंगे। उस रिसोर्सेस के अंदर दो टाइप के रिसोर्सेस है। कितने टाइप के? दो टाइप के रिसोर्सेस में होते हैं, दो टाइप के रिसोर्सेस, एक होते हैं एक्सटर्नल रिसोर्सेस और दूसरे होते हैं इंटरनल रिसोर्सेस, बाह्य स्रोत और आंतरिक स्रोत। ओके, एक बार फिर से आप नोट डाउन कर दीजिए, रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, एक एक्सटर्नल रिसोर्सेज और दूसरे इंटरनल रिसोर्सेज। ओके, तो अभी हम डिस्कस करेंगे पूरा एक्सटर्नल रिसोर्सेज मतलब बाह्य स्रोत। तो बाह्य स्रोत के अंदर कौन कौन से आएंगे, बाह्य रिसोर्सेज के अंदर कौन कौन से आएंगे। तो अभी सभी मैडम बता रहे थे, कोई ने, किसी ने फंड बताया, किसी ने लोकेशन बताया। ठीक है ना, तो यही हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो यू प्लीज नोट डाउन एंटरप्रेन्योर स्टेप का ये जो थर्ड स्टेप है रिसोर्सिंग, उसमें दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो अभी हम एक्सटर्नल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला सोर्स है हमारा फंड, पैसा। अभी हम बिजनेस करने जा रहे हैं तो हम फंड कहां से लाएंगे, पैसे हमको चाहिए होगा ना। ठीक है, तो पैसे हम कहां से लाएंगे, ठीक है, बताइए कहां से लाएंगे पैसे, फंडिंग कहां से लाएंगे हम। ठीक है, तो फंडिंग का इंपॉर्टेंस, लोन है, इन्वेस्टर है, बराबर, कोई हमारे स्पॉन्सर है, कोई हमारे फ्रेंड सर्कल में, फैमिली सर्कल में, बराबर, कोई हमको लैंड कर रहे हैं, वो भी है। लेकिन हमारा जो एज एन एंटरप्रेन्योर हमारा रिसोर्सेस होना चाहिए, गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट लॉन्स। हमको पता होना चाहिए कि भी सरकार हमको काफी सारी हेल्प कर रहे हैं, सरकार हमको काफी सारे बेनिफिट दे रहे हैं, सरकार हमको काफी सारी सब्सिडी के लाभ भी दे रहे हैं। तो हमको ये भी हमारे ध्यान में रखनी चाहिए। हमारे फंडिंग्स वगैरह हमके, हमारे खुद के सेविंग्स रहते हैं, हमारे खुद के पैसे होते हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर जो भी बिजनेस कर रहा होता है वो अपने खुद को थोड़े फंड निकालता है, लेकिन बाकी का फंड वो ऐसी कोई गवर्नमेंट बॉडी, ऐसी कोई लोन अवेलेबल हो, कोई सरकारी स्कीम अवेलेबल हो। ओके, सरकार ने स्पेशली आपके लिए ही, मतलब एंटरप्रेन्योर के लिए ही काफी सारी स्कीम्स वगैरह बनाई हुई है। पूरे इंडिया में देखिए आप, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने काफी सारी अच्छी अच्छी स्कीम्स गवर्नमेंट के जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे बिजनेस लॉन्स, बिजनेस सब्सिडीज वो बनाया हुआ है। तो हमारे लिए एक रिसोर्सेज, जो फंड की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास रिसोर्सेज है गवर्नमेंट फंडिंग, मतलब गवर्नमेंट की लोन, गवर्नमेंट की सब्सिडी, गवर्नमेंट की स्कीम्स, गवर्नमेंट की योजनाएं। तो ये हमारे पास एक अच्छा एक रिसोर्सेज है। तो पहले हम जो चर्चा कर रहे हैं फंडिंग की, तो फंडिंग हम कहाँ से लाए, तो हमारे लिए प्रेफरेंस रहेगा कि भाई गवर्नमेंट फंडिंग, गवर्नमेंट लॉन्स वगैरह, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। तो चलो ठीक है, तो पहले आप मुझे यही बताइए कि बिजनेस के टाइप्स कितने होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिजनेस आर देयर। बिजनेस के टाइप्स बताइए, बिजनेस के कितने प्रकार होते हैं, आप बताइए मुझे। ओके, राजू जी ने बताया 5, 2, राशिबेन ने। बिजनेस के 3 स्टेप, 3 प्रकार होते हैं, लिख लीजिए, यू प्लीज नोट डाउन, ऑल ऑफ यू प्लीज। बिजनेस के 3 प्रकार होते हैं, 3, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ बिजनेस। पहला है ट्रेडिंग, TRADING, ट्रेडिंग। दूसरा है सर्विस और तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग। तो बिजनेस के 3 प्रकार होते हैं। पहला है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मतलब क्या, कि यहां से माल लाए हम और यहां बेचा। बॉम्बे से हम गारमेंट्स का माल लाए, जीन्स वगैरह, टॉप्स वगैरह, लेडीज वेयर वगैरह हम लाए बॉम्बे से और यहाँ अहमदाबाद में लेके बेचा। ओके, लॉरी है, दुकान है, शॉप है, मॉल है, ग्रोसरी स्टोर है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस, TRADING, ट्रेडिंग। यहाँ से माल लाते हैं, यहाँ बेचते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग। सेकंड जो टाइप है हमारा, वो सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर मतलब क्या, सर्विस सेक्टर मतलब जिसमें प्रोडक्ट हम दिखते नहीं है, लेकिन सर्विसेज, जो हम सर्विसेज ले रहे हैं उसको फील करते हैं। क्या करते हैं, फील करते हैं। तो उसमें प्रोडक्ट हम टच नहीं करते, सर्विस में क्या है, हमको फील करना है। सर्विस मतलब सैलून बिजनेस, ठीक है, लेबोरेटरी है, ओके, और गैरेजेस है, ब्यूटी पार्लर है, ठीक है, मेहंदी के जो ट्यूशन क्लासेस है, कंसल्टेंसी सर्विस है, बराबर,
क्लिनिक्स है, ठीक है, इंश्योरेंस है, फाइनेंस है, कंसल्टेंसी बिजनेस है। आज लोगों का पता है एक सलाह सूचन देने का एक अच्छा बिजनेस एक शुरू हो रहा है, जैसे कि आपके पास लीगल डॉक्यूमेंटेशन का लीगल नॉलेज है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नॉलेज है, फिर आप अपना खुद का एक कंसल्टेंसी फर्म शुरू कर देते हैं, ठीक है, IELTS क्लासेस वगैरह रहते हैं, ओके, ये फॉरेन के क्लासेस जो ट्यूशन क्लासेस वगैरह रहते हैं, तो दे आर काइंड ऑफ सर्विस बिजनेस जिसमें सर्विसेज वगैरह रहती है, ठीक है। ट्रेडिंग अलग है, ठीक है, रिटेलिंग वगैरह हाँ अलग है, ये ठीक है, ट्रेडिंग अलग है, सर्विस पूरा अलग है। ट्रेडिंग रिटेलिंग वगैरह वगैरह सब बिजनेस है, ट्रेडिंग, और ये पूरा सर्विस सेक्टर मतलब पूरा अलग है। फाइनेंस है, इंश्योरेंस है, मार्केटिंग, बराबर, बैंकिंग का बिजनेस है, वो सर्विस सेक्टर। ब्यूटी पार्लर है, ठीक है, जैसे कि ट्यूशन क्लासेस जो है, फिर वो सीवन क्लासेस हो, कोई भी हो, मतलब इसको बोलते हैं सर्विस सेक्टर। और थर्ड स्टेप है, मतलब थर्ड प्रकार का जो बिजनेस है उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग, उत्पादन, ऑपरेशंस जिसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, मशीन्स रहते हैं, मैन पावर रहता है, पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस है, पूरा एक उत्पादन रहता है, मतलब बराबर, तो उसको क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग। तो 3 टाइप के बिजनेस है, तो सर्विस, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट की तरफ से तीनों प्रकार के बिजनेस करने के लिए लोन अवेलेबल है, सर्विस में भी, ट्रेडिंग में भी और मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी। मैं आपको 1 बाय 1 हर एक स्टेप में मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले हम फंडिंग पे ध्यान देते हैं। हम अभी बात कर रहे हैं, एक बार फिर से आपको रिमाइंड कराने के लिए, अभी मैं आपको बता रहा हूं, हाँ मैं 1 बाय 1 आ रहा हूँ सेजल जी, 1 बाय 1 में मैं आ रहा हूँ स्कीम्स के लिए। तो अभी मैं आपको जाऊंगा फंड के लिए, अभी मैं आपको फंड की बात करूंगा। तो हमारा जो थर्ड स्टेप है रिसोर्सेज के अंदर हम फंड की बात कर रहे हैं, बराबर। फंड इज वन ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेप, ठीक है ना। तो मैं आपको फंड की बात कर रहा हूँ। तो पैसे हम कहाँ से लाए, तो पहले तो मैंने आपको बिजनेस के टाइप दिखा दिए, मतलब सरकार हमको तीनों प्रकार के बिजनेस के लिए पैसे देते हैं, तो वो तो हमको क्लियर हो गया। अभी हम फंडिंग की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर एक स्टेट के अंदर, मैं अभी गुजरात का ऑफिसर हूँ, गुजरात का गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ मैं, तो गुजरात का तो काफी सारे मैं आपको इंफॉर्मेशन वगैरह दूंगा ही, लेकिन गुजरात के अलावा हर एक स्टेट के अंदर अपना खुद का एक सेपरेट इंडस्ट्री डिपार्टमेंट रहता है, कि जो पर्टिकुलर ये गवर्नमेंट की जो स्कीम्स रहती है, गवर्नमेंट की जो फंडिंग की जो स्कीम्स रहती है, वो इम्प्लीमेंट करवाने का काम करती है। तो हर एक स्टेट के अंदर हर एक डिपार्टमेंट रहता ही है, जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जो ध्यान रखते हैं, वो ये पूरा इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, लोन वगैरह का, सब्सिडी वगैरह का देखती है। तो हर एक स्टेट में अलग अलग रहता है। मैं आपको अभी फोकस ओवरऑल कुछ जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह है जो पूरे इंडिया में चल रही है, और गुजरात गवर्नमेंट की स्कीम्स, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, पैसे कहाँ से मिलेंगे आपको, फंडिंग वगैरह। तो गुजरात के अंदर टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है बताएंगे आप, बता सकते हैं आप गुजरात के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट है टोटल? गुजरात के अंदर टोटल देयर आर 33 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, 33 डिस्ट्रिक्ट्स है गुजरात में टोटल। और 33 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर सेंटर रहता है। ऑल ऑफ यू प्लीज नोट डाउन, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, जिसको बोलते हैं जिला उद्योग केंद्र, जिला उद्योग केंद्र, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। तो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर क्या करती है कि ऐसी जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स वगैरह रहती है उसको इंप्लीमेंट करवाने का काम करती है। मतलब ये DIC आपको डायरेक्टली पैसे नहीं देती, आपको डायरेक्टली लोन नहीं देती, लेकिन वो प्रोसेस करती है। जैसे कि आपने फॉर्म भरा, फॉर्म मैंने प्रोसेस किया, देखा, स्क्रूटिनी किया, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए, और मैं रिकमेंडेशन देता हूँ कि चलो ये इनका ये फॉर्म ठीक है, ओके है, हम इनको रिकमेंड करते हैं ये इतना लोन देने के लिए। फिर हम जाएंगे, हम भेजेंगे पूरा प्रपोजल बैंक में, और बैंक वाले आपको लोन देंगे। हाँ जी, हर एक स्टेट में के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर रहता ही है। हर एक स्टेट के अंदर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रहता है, जैसे आपने पहले भी हमने डिस्कस किया। हर एक स्टेट के अंदर अपना खुद का एक ऑर्गेनोग्राम, अपना एक खुद का एक ऑर्गेनो स्ट्रक्चर वगैरह रहता है। तो वो तो आप वेबसाइट वगैरह देखेंगे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का, तो उसमें आपको पूरा लिस्ट मिलेगा, और इम्प्लीमेंटेशन जो कैसे करते हैं वो भी उसका इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। मैं भी आपको बताऊंगा।
बराबर, मेरा भी नंबर मैं आपको दूंगा, मैं आपको गाइड करूंगा उसके लिए। तो फंडिंग के लिए मैं आपको एक सबसे बढ़िया एक स्कीम जो गवर्नमेंट योजना जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसका आप नोट डाउन कर दीजिए। सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूं प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। फंडिंग की हम बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट स्कीम्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप नोट डाउन कर दीजिए। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, PMEGP, PMEGP, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, PMEGP। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, पूरे इंडिया में ये अवेलेबल है, पूरे इंडिया के अंदर कोई भी स्टेट के अंदर, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है PMEGP। तो ऑल ऑफ यू प्लीज नोट डाउन, PMEGP स्कीम के अंतर्गत हमको दो टाइप के बिजनेस, अगर आपका सर्विस सेक्टर बिजनेस है और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ये दोनों टाइप के बिजनेस के लिए आपको मैक्सिमम अप टू 25 लाख 25 लाख तक की लोन मिलती है। आप नोट डाउन कर दीजिए फिर से एक बार, PMEGP स्कीम के अंदर आपको सर्विस सेक्टर में अप टू 10 लाख और मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में अप टू 25 लाख तक का लोन मिलता है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट भी दूंगा, ठीक है, आपको वेबसाइट दूंगा, आपको उसका इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं अभी, आप जरा नोट डाउन कर दीजिए। तो एक PMEGP का भी वेबसाइट है, PMEGP.gov.in। सेशन खत्म होने के बाद मैं आपको ईमेल आईडी वगैरह में मैं पूरा उसका लिंक वगैरह और जो भी मैंने अभी आपको बोला उसका पूरा इंफॉर्मेशन में डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में आपको भेजूंगा, तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू, ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट स्कीम है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, जिसमें आपको सर्विस सेक्टर बिजनेस के लिए 10 लाख और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए 25 लाख तक का लोन मिलता है। इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, हर एक जिले, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर रहता है। जैसे कि गुजरात के अंदर 33 डिस्ट्रिक्ट है, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर रहता है, वहां जाके आपको इंफॉर्मेशन लेनी है। लेकिन PMEGP की सबसे एकदम अच्छी मतलब प्लस पॉइंट यही है कि ये पूरा स्कीम ऑनलाइन है, आपको इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल पे आपको अप्लाई करना है, तो वो आप नोट डाउन कर दीजिए, kvic.gov.in। all of you please note down, KVIC, okay, you please note down the PMEGP, the Prime Minister Employment Generation Program, that is basically central government's funded scheme, and that is for two business, that is applicable for two business, one for service sector up to 10 lakhs, you will get a loan of rupees 10 lakh for service sector business, and for manufacturing, for production based business, you will get a loan of rupees 25 lakhs. So that you please note down, and for that you have to consult your respective district industry center based at your districts. Okay, all of you please note down, PMEGP, Prime Minister Employment Generation Program. And second beauty is this scheme is basically a subsidy scheme. ये जो स्कीम है हमारा वो सब्सिडी वाला स्कीम है, मतलब you will eligible to get minimum 15% to maximum 35% of subsidy, ठीक है ना, सब्सिडी मिलता है वो लाइक विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट कैटेगरीज, मतलब शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, वुमेन के लिए, तो मैक्सिमम 35% तक का सब्सिडी मिलता है, ठीक है ना। तो ये पूरा जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया दैट इज अवेलेबल ऑन वेबसाइट, आप उसको स्टडी भी कर सकते हो, दैट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आपको एकदम इजी उसका इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। आप नोट डाउन कर दीजिए वेबसाइट, दो वेबसाइट में आपको लिखवाऊंगा, PMEGP.gov.in और दूसरी है KVIC.gov.in, ठीक है, नोट डाउन कर दिया आपने, फाइन, okay, yes, definitely, KVIC.gov.in and PMEGP, yes, पूरा इसमें सब्सिडी रहता है, कैपिटल सब्सिडी वगैरह। आपको मैं जो वेबसाइट PMEGP.gov.in में आप जाओगे तो उसके अंदर पूरा वो सब्सिडी का पूरा जो है दैट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, आप उसमें जाइए और नोट डाउन कर दीजिए
और कंसल्ट कीजिए एक बार, DIC में जाके आप एक बार रूबरू मिलिए। तो बेसिकली क्या है कि DIC में आप रूबरू जाओगे तो देयर आर पर्टिकुलर ऑफिसर्स असाइंड फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम। वहां एक अलग से ऑफिसर बिठाए रहते हैं, वो ऑफिसर आपको पूरा गाइड करते हैं कैसे करना है, फॉर्म वगैरह फिलअप वगैरह, वो गाइडेंस भी देते हैं, और आपको ऑनलाइन फॉर्म वगैरह वो आपको मतलब इजी है, मतलब एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आप ऑनलाइन फॉर्म उसका भर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता भी नहीं चल रहा है तो DIC ऑफिस में वहां ऑफिसर्स रहते हैं, ड्यूटी उनको असाइन किया हुआ है, वो आपको गाइड भी करेंगे। ठीक है, सेकंड नंबर पे हम इसके आगे जाएंगे। दूसरा एक स्कीम है मुद्रा। आपने मुद्रा का नाम सुना होगा आपने, जिसका लिखिए MUDRA मुद्रा। आप वेबसाइट लिख सकते हो MUDRA mudra.org.in। आप जरा इसमें एक तेजल मैडम आप जरा इसमें लिख लीजिए mudra.org.in। यस, थैंक यू सो मच। MUDRA mudra.org.in। तो ये मुद्रा करके जो स्कीम है दैट इज फॉर ऑल बिजनेस, सर्विस सेक्टर, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, हर एक के लिए। मैक्सिमम अप टू 10 लाख, मिनिमम 50,000, 50,000 और मैक्सिमम 10 लाख। सो मिनिमम 50,000 से लेके मैक्सिमम 10 लाख तक का बिजनेस ये लोन देते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मुद्रा के लिए मैं कहाँ जाऊंगा, मुद्रा के लिए मैं कहाँ अप्रोच करूंगा, तो आप लिख लीजिए, ऑल ऑफ यू प्लीज नोट डाउन, ऑल पब्लिक सेक्टर यूनिट बैंक, PSU बैंक्स, जो हमारा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो बैंक है, जैसे कि SBI है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, इंडियन बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, जो भी सभी ये नेशनलाइज जो बैंक होती है, वहां जाके आपको मुद्रा का फॉर्म भरना होता है। हर एक बैंक के पास अपना खुद का एक एप्लीकेशन फॉर्म रहता है मुद्रा का, तो मुद्रा का फॉर्म भर के आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। तो मुद्रा का स्कीम भी बहुत अच्छा है, उसमें सब्सिडी नहीं है, दैट इज ओनली लोन। मुद्रा का एक आपको एक पूरा लोन देता है, एक पैकेज पूरा रहता है, 10 लाख तक का लोन आपको मिलता है। उसके लिए आपको जाना है डायरेक्टली बैंक में, कोई भी नेशनलाइज बैंक हो, डायरेक्टली नेशनलाइज बैंक को आपको अप्रोच करना है। ठीक है, नहीं मुद्रा में बेसिकली मुद्रा एक बिना कोलैटरल का एक स्कीम लॉन्च किया है, ओनली फॉर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, ओनली फॉर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। तो ये पूरा एक विदाउट गारंटी रहता है मुद्रा में, तो आप उसका अप्रोच कीजिएगा। मैं आपने ये गारंटी वाला एक बताया चीज, तो एक अच्छी बात आपने रिसेंटली न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, आपने एक वीक पहले न्यूज़पेपर में आया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कोविड टाइम के बाद, मतलब पोस्ट कोविड पीरियड में, एक ओनली फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर एक नया लोन लॉन्च किया है। हाँ, ओनली फॉर वुमेन, यस, मैं आपको बताने जा रहा हूं अभी। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने ओनली फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर एक लॉन्च किया है सरकारी योजना, जिसको महिला निधि स्कीम बोलते हैं। महिला निधि वो स्पेशली सिडबी ने लॉन्च किया है। आप ऑल ऑफ यू प्लीज नोट डाउन, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी, SIDBI, यस, SIDBI आप लिख लीजिए, यस, SIDBI, उसका वेबसाइट भी है, नोट डाउन, यू प्लीज नोट डाउन, sidbi.in, SIDBI sidbi.in, यस। ये तो सिडबी ने एक हाँ, नॉर्मली क्या रहता है, नॉर्मली ऐसा होता है कि कोई भी एक गवर्नमेंट का एक स्कीम का जो बेनिफिट हो एट ए टाइम आप एक बार ले सकते हो, मतलब एक बार आपका खत्म हो गया, फिर दूसरी बार वो स्कीम या फिर दूसरी कोई स्कीम का बेनिफिट ले सकते हो। लेकिन दैट डिपेंड्स, आप बैंक में आप जाओगे तो वो आपको गाइड करेंगे। मतलब ये एक अच्छा स्कीम है, ओनली फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर, महिला निधि स्कीम। द सिडबी इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर पर्टिकुलर दिस स्कीम। तो उसके लिए आपको कहाँ जाना है, सिडबी में, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वहां जाके आप इंक्वायरी कीजिए कि रिसेंटली वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए अप टू 10 लाख तक का, 10 लाख तक का लोन बिना कोलैटरल, कोई भी सिक्योरिटी के बगैर ये आपको लोन मिलेगा, मतलब उन्होंने ये मेंशन किया। तो ये भी अब एक अच्छा स्कीम है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि PMEGP स्कीम भी सब्सिडी वाली एक अच्छी स्कीम है, जो उसमें वुमेन के भी बेनिफिट है और सब कैटेगरी के लिए बेनिफिट है। फिर दूसरा मैंने आपको मुद्रा बताया, तो मुद्रा डायरेक्टली आपको बैंक में से ही जाना है, बराबर। तीसरा स्कीम मैंने आपको ये सिडबी का बताया, तो दैट इज ऑल्सो गुड। ओके, फिर मैं आगे जाऊंगा कि ऑल ऑफ हर एक स्टेट के स्टेट डिपार्टमेंट की भी स्कीम्स रहती है। ये अभी मैंने आपको ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बताया था, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट में ये सिडबी करके जो
हमारा डिपार्टमेंट है, बैंक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो सिडबी का भी काफी अच्छा स्कीम्स वगैरह रहती है, बराबर, अच्छे इंटरेस्ट पे होती है। हाँ, सिडबी में भी इंटरेस्ट सब्सिडी वगैरह रहती है। सिडबी में आपको फॉर्म भरोगे, सिडबी में आप जाओगे तो आपको पूरा इंफॉर्मेशन भी देंगे, सब्सिडी वाला लोन भी अंदर रहता है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि पर्टिकुलर आपको पता होना चाहिए, ये सभी जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। इसीलिए जो वेबसाइट हम देते हैं, हाँ, एग्जिस्टिंग बिजनेस, न्यू बिजनेस सबके लिए है, ठीक है। दैट इज फॉर सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, बोथ एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। तो इसमें क्या है कि यू शुड बी अवेयर, मतलब एज एन एंटरप्रेन्योर, एज ए वुमन एंटरप्रेन्योर, आपको पता होना चाहिए कि भाई ये गवर्नमेंट के अलग अलग बेनिफिट्स है, बराबर, मुझे एज ए आइडिया होना चाहिए। तो मैं कल उठ के मैं जाऊं, बैंक में जाऊं या फिर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में जाऊं या फिर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में जाऊं, तो मुझे पता होना चाहिए कि ये सब गवर्नमेंट स्कीम्स है, तो उसका मैं बेनिफिट अवेल कर सकती हूँ मैं, ठीक है। तो वो आप देख लीजिए। तो मैंने आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की काफी सारी योजनाएं हैं। अभी तो देखिए, रिसेंटली मैं आपको बताऊं कि बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्टेट गवर्नमेंट के साथ, हमें यानी कि गुजरात गवर्नमेंट के साथ एक एमओयू भी किया है कि जो भी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर, बराबर, अप टू 5 CR तक का, 5 करोड़ तक का लोन भी लेना चाहते हैं, तो उनको हम जल्दी से जल्दी उनको हम डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस वगैरह जल्दी खत्म करके उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दे। तो ऐसा भी एक अच्छा सा स्कीम आया है। मतलब अभी तो क्या है कि जो वेरियस बैंकिंग इंस्टीट्यूशन वो भी काफी एक्टिव रहा है। आपके जैसे जो भी यंग एंटरप्रेन्योर है, ऑलरेडी आप बिजनेस कर रहे हैं, इस ग्रुप में भी काफी सारे वुमेन एंटरप्रेन्योर वगैरह है, तो काफी अच्छा बिजनेस कर रहा है, तो उनको भी गवर्नमेंट की तरफ से काफी अच्छा एक सपोर्ट रहता है एमएसएमई के लिए, बराबर, जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। जैसे कि जो एग्जिस्टिंग बिजनेस भी कर रहे हैं, नया बिजनेस भी कर रहे हैं, उनके लिए भी एक अच्छा सा एक प्रेफरेंस रहता है। तो अभी तो काफी एक्टिव है एंटरप्रेन्योर के लिए। उसमें भी मेनली आप देखने जाए तो वुमेन एंटरप्रेन्योर जो रहते हैं, उनको नॉर्मली जो मेल एंटरप्रेन्योर है उनसे भी 2% सब्सिडी का बेनिफिट ज्यादा मिलता है। जैसे कि अगर आप यंग एंटरप्रेन्योर हो, बिलो 35 और बिलो 35, तो 1% ज्यादा, मतलब 7% का सब्सिडी वगैरह मिलता है। तो ये क्या है कि वुमन एंटरप्रेन्योर के लिए बेनिफिट्स काफी अच्छे हैं। हर एक बिजनेस में आप देखने जाओ, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं आपको 1 बाय 1 देखूंगा, ठीक है। तो अभी हम जो गवर्नमेंट फंडिंग की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि एक बार हमने पीएमईजीपी देखा, तो वो सब्सिडी वाला स्कीम है, तो वो एक अच्छा बेनिफिट है आपको। आपके जो डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर रहते हैं, वहां जाके आपको अप्लाई करना है। वो तो ऑनलाइन ही है, ऑनलाइन मैंने आपको वेबसाइट दे दिया, ऑनलाइन अप्लाई करो आप, ओके। पता नहीं चलता तो आप डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में आप अप्रोच करो, बराबर। सेकंड नंबर का जो स्कीम है, मुद्रा करके स्कीम है, जिसमें आपको 10 लाख तक का मिलता है। थर्ड मैंने आपको बताया कि सिडबी का एक डायरेक्टली वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए अप टू 10 लाख तक का एक लोन रहता है, ठीक है। और सिडबी एक ऐसी अथॉरिटी है कि जहां आपको वेरियस बिजनेस के लिए, अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग लोन काफी बेनिफिट मिलते हैं। फोर्थ नंबर पे मैं आपको बताना चाहूंगा नाबार्ड। ऑल ऑफ यू प्लीज नोट डाउन nabard.org। तेजल मैडम आप जरा लिख लीजिए इसमें, नाबार्ड, NABARD, नाबार्ड करके है स्कीम। नाबार्ड, तो नाबार्ड की हम जो बात कर रहे हैं, तो नाबार्ड इज बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज। नाबार्ड का बेसिकली क्या है कि जो भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, जो भी एग्रीकल्चर में, मिल्क प्रोडक्ट्स में, एनिमल फार्मिंग में, ठीक है, ऐसे सेक्टर में कोई जाना चाहता है, नाबार्ड इज बेसिकली फॉर रूरल बैंकिंग। रूरल बैंकिंग है, एग्रीकल्चर बैंकिंग है, उसके लिए नाबार्ड प्रेफरेंस करता है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा सा एक बैंक है, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो गवर्नमेंट इंडिया का कोई भी बंदा, सिटीजन, हम आपको देते हैं। तो नाबार्ड का पर्टिकुलर जो बात कर रहे हैं, तो नाबार्ड के अंदर आप लिख लीजिए, जो भी गवर्नमेंट ये रूरल सेक्टर में कोई मिल्क प्रोडक्ट्स का, काउ फार्मिंग, एनिमल फार्मिंग कोई करना चाहता है, मिल्क फार्मिंग का बिजनेस कोई करना चाहता है, फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस कोई करना चाहता है, तो उसके लिए नाबार्ड फाइनेंस करता है। नाबार्ड डायरेक्टली फाइनेंस नहीं करता, वो अपनी जो गवर्नमेंट ऑफ ये जो ग्रामीण बैंक रहती है, ग्रामीण बैंक के द्वारा वो फाइनेंस देते हैं।
तो ग्रामीण बैंक कौन कौन सी हमारी, जैसे कि सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक है, बड़ौदा ग्रामीण बैंक है, देना ग्रामीण बैंक है। तो नाबार्ड, यस यस, वी विल डेफिनेटली हैव ए क्वेश्चन आंसर सेशन, तो हम डिस्कस भी करेंगे। तो नाबार्ड के अंदर जो हमारे जो उनका फाइनेंस वगैरह रहता है नाबार्ड, तो वो ये जो ग्रामीण बैंक होती है, जो रूरल बैंक जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा वो फाइनेंस करने की एक्टिविटी करते हैं। तो सबने नोट डाउन किया होगा, ठीक है ना, कि नाबार्ड, ऑल ऑफ यू प्लीज नोट डाउन। वेबसाइट भी आपने मेंशन किया है nabard.org। तो नाबार्ड की भी काफी सारी अच्छी अच्छी स्कीम्स वगैरह रहती है, तो उसको भी आप नोट डाउन कर दीजिए। दूसरा, ये तेजल मैडम ने अभी लिखा था कि ओनली फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर। तो वुमेन एंटरप्रेन्योर नाबार्ड में कोई ऐसा बैंक का कोई लिमिट ऐसा होता नहीं है, आपका बिजनेस जो पर्टिकुलर रहता है उसके हिसाब से आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट नोट डाउन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट रखिए, ठीक है, और वहां आगे नोट डाउन कीजिए, आपको मिलेगा। उसके लिए टेक्नोलॉजी के लिए भी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन वगैरह लोन भी मिलता है हर एक बैंक सेक्टर में, तो उसका भी आप आएगा 1 by 1। यस, उसके ऊपर भी मैं आऊंगा 1 by 1, फंडिंग के बाद में आऊंगा उसके लिए। तो नाबार्ड की हम बात कर रहे थे, तो अभी हमारा फोकस जो है, अभी हमने पूरा फंडिंग के बारे में बताया आपको कि फंडिंग कहाँ से ले, कैसे ले फंडिंग, ठीक है। तो इसके बाद अभी हमारा जो रिसोर्सेस का जो हमारा चल रहा है पर्टिकुलर, उसके अंदर हम जो फंडिंग की बात कर रहे हैं, उसमें हमारे पास और भी ऑप्शन भी है फंडिंग के लिए। तो अभी मैं आपको गुजरात गवर्नमेंट की बात करूंगा मैं, कि वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए हमारे जो भी एंटरप्रेन्योर है उसको हम गुजरात गवर्नमेंट में हम क्या क्या बेनिफिट दे सकते हैं दूसरा, ठीक है, तो उसको भी हम नोट डाउन कर दीजिए। तो गुजरात गवर्नमेंट में गुजरात का एक अच्छा सा एक स्कीम है, दैट इज वाजपेयी बैंकेबल योजना। ऑल ऑफ यू प्लीज नोट डाउन, दिस इज अ वेरी गुड स्कीम, वाजपेयी बैंकेबल योजना। ऑल ऑफ यू प्लीज नोट डाउन, वाजपेयी बैंकेबल योजना बहुत ही अच्छी स्कीम है। तो वाजपेयी बैंकेबल योजना में, हाँ यस, वाजपेयी बैंकेबल योजना, वाजपेयी बैंकेबल योजना के अंदर आपको तीनों प्रकार के बिजनेस, मतलब सर्विस, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग, तीनों प्रकार के बिजनेस के लिए अप टू 8 लाख तक की लोन मिलती है। और वो 8 लाख तक की लोन आपको बेनिफिट लेने के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में जाके आपको एक ऑफलाइन फॉर्म रहता है उसका, वहां आपको फॉर्म मिलेगा, और वो फॉर्म फिलअप करके उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपको अटैच करना है जो वगैरह रहता है, वहां के जो ऑफिसर है वो आपको गाइड करेंगे ही, और वो डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आपको जो भी मशीनरी लेना है या जो कुछ भी लेना है उसका जो ये बोलते हैं ना बिल वगैरह, इनवॉइस की कॉपी, बराबर, तो वो अटैच करके आप वो आगे प्रोसेस कर सकते हैं। उसकी वेबसाइट भी आप जरा एक बार नोट डाउन कर दीजिए, वाजपेयी बैंकेबल की, cottage.gujarat.gov.in, COTTAGE cottage.gujarat GUJARAT.gov.in, cottage.gujarat.gov.in, ठीक है। तो ये उसका वेबसाइट है, ये उसका वेबसाइट है कॉटेज डिपार्टमेंट का। तो वाजपेयी बैंकेबल योजना, दैट इज वेरी गुड स्कीम। और वाजपेयी बैंकेबल योजना के अंतर्गत टोटल 396 कितने 396 बिजनेस आइडियाज वगैरह है, बिजनेसेस वगैरह है जो इसके अंदर एप्लीकेबल है, वो ये लोन के अंदर वो अवेल कर सकते हैं। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, सर्विस है, मतलब फूड प्रोसेसिंग में है, एग्रो में है, कोई अपना सीट मेटल फैब्रिकेशन का बिजनेस करना चाहता है, कोई केक्स का बिजनेस करना चाहता है, कोई अपना सैलून बिजनेस करना चाहता है, ब्यूटी पार्लर, कुछ भी, यानी कि पूरे 396 बिजनेसेस इसके अंदर इन्वॉल्व है। आपको 396 बिजनेस के रेडी रेकनर प्रोफाइल आपको मिल जाएगा ये वेबसाइट पे। ऑल ऑफ यू प्लीज नोट डाउन, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको 396 मतलब 396 बिजनेस आइडियाज यही वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, cottage.gujarat.gov.in। दिस इज वेरी एसेंशियल, ठीक है। तो यही वेबसाइट पे आपको 396 अलग अलग बिजनेस आइडियाज आपको मिलेंगे। तो अगर आपके ग्रुप में, हमारे जो ये अभी ग्रुप है उसमें किसी के पास बिजनेस आइडिया नहीं है, उसको अभी स्टडी करना है, तो स्टडी के लिए भी रेडी रेफरेंस के लिए प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स भी ये वेबसाइट के अंदर दिए हुए हैं, तो उसको भी आप पढ़िए, उसको भी आप आइडिया लीजिए, ठीक है। तो वाजपेयी बैंकेबल योजना, दिस इज अ वेरी गुड स्कीम, 8 लाख तक का लोन मिलता है, और वो उसमें सब्सिडी वगैरह भी रहते हैं, सब्सिडी भी काफी अच्छी होती है उसमें,
ठीक है, उसमें सिंपल फॉर्म भरना होता है, फॉर्म सबमिट करना होता है, और ये पूरा प्रोसेस अप टू 25 days to 30 days, मतलब 20 से 30 दिन तक का ये पूरा पीरियड रहता है, जिसमें आपका लोन ये DIC जो है, जिला उद्योग केंद्र जो है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, वो रिकमेंड करती है कि वी आर रिकमेंडिंग दिस वुमन एंटरप्रेन्योर टू गिव अ लोन ऑफ अप टू दिस रुपीज, एंड दे आर रिकमेंडिंग टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दैट इज बैंक। तो वो बैंक को आगे फॉरवर्ड करते हैं और बैंक वाले हमको लोन देते हैं। तो दिस इज द प्रोसीजर, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी गुड स्कीम, वाजपेयी बैंकेबल योजना। दोज हु आर फ्रॉम गुजरात के या नहीं, सबके लिए है, वुमेन के लिए, जेंट्स के लिए, सबके लिए है मैडम, ठीक है। ये अभी जो आपको बता रहा हूं मैं स्कीम्स, वो सबके लिए है, वुमेन, मेल, फीमेल, हर एक एंटरप्रेन्योर के लिए है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वुमेन एंटरप्रेन्योर, हर एक एंटरप्रेन्योर के लिए है। ऐसा कोई सेपरेट नहीं है, हर एक के लिए है। लेकिन मैंने जो आपको वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए जो सेपरेट, इसके अलावा भी ये जो मैं बता रहा हूँ लॉन्च, उसके अलावा भी मैंने आपको सेपरेट ये वुमेन निधि स्कीम आपको बताई, ठीक है। बाकी सब स्कीम आप वुमेन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। ओके फाइन। तो एज अप टू 50 तक का क्राइटेरिया रहता है, 50-55 तक का, 55 इयर्स एज तक का क्राइटेरिया रहता है उनका, बाकी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। बाकी तो 58-60 तक का चलता है, लेकिन अप टू 55-58 तक का एज रहता है, कोई इश्यू नहीं। आगे बढ़े। अभी हमारे ग्रुप के अंदर काफी सारे वुमेन एंटरप्रेन्योर है। तो वुमेन एंटरप्रेन्योर घर पे जैसे कि पेपर बैग्स मैन्युफैक्चर करते हैं, घर पे कुछ खाने पीने के आइटम बनाते हैं, घर पे कुछ हैंडलूम या हैंडीक्राफ्ट के आइटम बनाते हैं, घर पे कुछ जूट बैग वगैरह बनाते हैं, बड़ा कोई रबर की आइटम बनाते होंगे, प्लास्टिक के आइटम बनाते होंगे। तो ये सब घर पे बैठे बैठे बिजनेस कर रहे हैं, या फिर कोई कॉटेज इंडस्ट्री का बिजनेस करते होंगे, कुटीर उद्योग जिसको बोलते हैं। तो ऐसा बिजनेस करने वालों के लिए, उनको बिजनेस के प्रमोशन के लिए, मतलब बिजनेस का प्रमोशन मतलब मेरे पास प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का प्रमोशन तो मुझे करना पड़ेगा ना। तो प्रोडक्ट का प्रमोशन मैं कैसे करूंगा, ठीक है, मैं प्रोडक्ट का प्रमोशन मैं कैसे करूंगी। तो वो प्रमोशन के लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से आपको एग्जीबिशन के लिए आपको जगह देते हैं, आपको स्टॉल वगैरह भी देते हैं, ठीक है। उसके लिए आप जरा नोट डाउन कर दीजिए, मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको लिखवाता हूँ, ठीक है। इंडेक्स बी, इंडेक्स सी लिख ले, ऑल ऑफ यू प्लीज नोट डाउन, इंडेक्स सी फॉर कॉटेज, ठीक है। यस एग्जैक्टली, इंडेक्स सी, एक्स के बाद टी भी आएगा, इंडेक्स सी, और सी कैपिटल में आएगा, ठीक है, इंडेक्स सी। तो इंडेक्स सी करके एक संस्था है गुजरात गवर्नमेंट का, हाँ यस एग्जैक्टली, इंडेक्स सी करके। तो ये क्या होता है कि एक आर्टिशन कार्ड वगैरह देती है। आर्टिशन मतलब कलाकार, मेरे पास कोई अच्छी कला है, मैं कलाकार हूं मैं, ठीक है। तो अगर आप घर पे पेपर बैग बनाते हैं, जूट बैग बनाते हैं, कोई अच्छी हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट आइटम बनाते हैं, घर पे कुछ टॉयज बनाते हैं, ठीक है, आप कोई मिट्टी में से कुछ आइटम बनाते हैं, ठीक है। तो ये सब के लिए जो घरगथ्थू बिजनेस जो बोलते हैं, कुटीर उद्योग जो बिजनेस, तो उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से आर्टिसन कार्ड मिलता है, ऐसा एक आईडी कार्ड जैसा होता है वो। उसके लिए भी आपको रूबरू फॉर्म भरना होता है, मतलब जिला उद्योग केंद्र जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में जाके आपको उसका फॉर्म भरना रहता है। फॉर्म भर के आप जो बिजनेस कर रहे हो, हैंडलूम या हैंडीक्राफ्ट जो भी है, उसका एक फोटोग्राफ आपको अटैच करना होता है, आपका डॉक्यूमेंट अटैच करने होते हैं बस। और आपको एक इंडेक्स बी का एक कार्ड मिलता है, जिसको ये आर्टिशन कार्ड बोलते हैं। और वो आर्टिशन कार्ड आपके पास होता है तो गवर्नमेंट गुजरात जब भी ऐसे कोई एग्जीबिशन, ऐसे कोई स्टॉल्स वगैरह, ऐसा कोई प्रदर्शन वगैरह जो करते हैं, तो उसमें हमको ये ज्वेलरी डिजाइन के लिए, सबके लिए, जो भी घर के अंदर कुछ बनाते हैं, अपना खुद का आइटम है, अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसके लिए आर्टिशन कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एक बार आपके पास ये आर्टिशन कार्ड हो गया तो उसका बेनिफिट लेके आपको कोई, जैसे कि एग्जीबिशंस है, फेयर्स, फेस्टिवल्स है, तो उसमें आपको एक बहुत ही नॉमिनल कॉस्टिंग पे या फिर ऑलमोस्ट फ्री कॉस्टिंग पे आपको ये स्टॉल वगैरह देते हैं, और वो स्टॉल में बैठ के आप उसका ये प्रोडक्ट का मार्केटिंग वगैरह कर सकते हो। तो दिस इज अ वेरी गुड एंड वेरी ब्यूटीफुल स्कीम, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा है, आप ध्यान में रखिए। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टार्टअप इंडिया, आपने नाम तो सुना होगा, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। तो अभी हम बात कर रहे थे वुमेन एंटरप्रेन्योर की,
तो वुमेन एंटरप्रेन्योर की स्टैंड अप मित्र योजना एक है, स्टैंड अप मित्र, ठीक है, स्टैंड अप मित्र करके, जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वुमेन, सभी प्रकार की वुमेन, जनरल, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सभी कैटेगरी की जो वुमेन रहते हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर हमारे जो रहते हैं, उनके लिए सिडबी में डायरेक्ट बैंक फाइनेंस की योजना है। उसके लिए आपको क्या करना है, डायरेक्टली स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी में जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। अगर सिडबी में कोई रेफरेंस चाहिए तो मैं आपको दूंगा रेफरेंस, वहां श्रीवास्तव साहब करके भी है, बराबर। SIDBI सिडबी, वहां श्रीवास्तव साहब भी है, डॉक्टर विमल दुबे साहब भी है, तो मैं आपको रेफरेंस भी दूंगा वहां, तो वहां जाके आप अप्रोच कर सकते हो। तो फंडिंग के लिए तो हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस वगैरह आ गए हैं, आप देख लीजिए, फंडिंग्स के लिए काफी सारे ऑप्शंस वगैरह है, तो उसका आप अवेल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वुमेन एंटरप्रेन्योर को ये काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन रहा होगा, मैं आशा रखता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स को हमको पता होना चाहिए। आज हम कोई भी बिजनेस करने जा रहे हैं, तो एक तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक आपको एडवाइस दूंगा कि न्यूज़पेपर पढ़े, गूगल न्यूज, याहू न्यूज, आपको जब भी आपको टाइम मिले आप न्यूज पढ़े। आप टीवी पर भी न्यूज आते हैं, एक बार एक 10-15 मिनट निकाल के आप न्यूज पढ़े, न्यूज़पेपर पढ़े, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि उसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन वगैरह एंटरप्रेन्योर के लिए काफी माहिती रहती है, तो उसका आप बेनिफिट भी ले सकते हो। तो अभी तक मैंने आपको जो फंडिंग के बारे में बताया तो आपको काफी सारी स्कीम मैंने बताई। उसके लिए इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, जो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का है, यही बैंकिंग का मैंने आपको बताया, ओके, नाबार्ड का मैंने आपको बताया, सिडबी का स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आपको बताया, ठीक। फिर आपको मैंने ग्रामीण बैंकों के बारे में बताया। इसके अलावा हमने PMEGP स्कीम देखी, वाजपेयी बैंकेबल योजना देखी, आर्टिशन कार्ड के बारे में देखा। तो दीज आर द बेसिकली गवर्नमेंट बेनिफिट्स विच आर अवेलेबल फॉर अस फॉर ऑल द टाइम, ठीक है। तो इसका बेनिफिट लीजिए, ओके। शेयर स्टैंड अप इंडिया के लिए आप एक नोट डाउन कर दीजिए मैडम। स्टैंड अप इंडिया में आप यू प्लीज नोट डाउन वन वेबसाइट standupindia.in, आप जरा लिख लीजिए। यस, स्टैंड अप इंडिया, आप गूगल में डालिए standupindia.in, तो आपको वो पूरा वेबसाइट मिल जाएगा। और दूसरी एक खास बात बताना चाह रहा हूं, ये स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप मित्र, जो भी स्कीम्स वगैरह है, वो इम्प्लीमेंट कौन करता है? तो स्टैंड अप इंडिया वगैरह की जो सभी स्कीम है वो इम्प्लीमेंट करता है सिडबी, SIDBI, सिडबी। तो सिडबी इज द ओनली गवर्नमेंट बैंक which is implementing all these government schemes, जो भी हमने स्टार्टअप इंडिया बोला, स्टैंड अप इंडिया बोला, स्टैंड अप मित्र बोला, तो यही स्कीम ये इम्प्लीमेंट कर रही है, ओके। तो आगे बढ़े, फाइन। तो फ्रेंड्स, एक मिनट बिफोर वी मूव ऑन टू सम अदर सब्जेक्ट, देयर वाज अ क्वेश्चन के नहीं, अभी आ रहा है, अभी चालू है अभी। हाँ, नहीं, ये फाइनेंस का था, तो मैंने सोचा एक बार आपको पूछ लूं। वो बोल रही हैं कि वो काफी बार गई हुई हैं, बट वहां से उनको मिल नहीं रहा है जितना रिस्पांस चाहिए। मतलब कौन सी स्कीम में? मुझे प्लीज स्पेसिफाई वन गवर्नमेंट स्कीम। Yeah, she had mentioned earlier. Surbhi, could you please unmute and talk about it? मुद्रा। धर्मेंद्र जी, मैं कई बार स्टैंड अप इंडिया के लिए जो करीबन अप टू 1 CR तक का लोन है विदाउट कोलैटरल, उसके लिए भी मैंने अप्रोच किया है, मुद्रा के लिए भी अप्रोच किया है। वो हमेशा एक ही बात कहते हैं, मैडम सरकार लिख देती है कोलैटरल फ्री कुछ होता नहीं है, तो आप उसके अगेंस्ट में क्या हमको दिखाएंगे? 1 करोड़ हम दे देंगे, उसके अगेंस्ट में आप हमको क्या दिखाएंगे? इसमें एक मैं आपको बता रहा हूँ सुरभि जी, एक गवर्नमेंट स्कीम है CGT MSE, आप लिख लीजिए अभी, जिसमें 1 CR तक का जो अपना कोलेटरल फ्री लोन रहता है, CGT MSE लिख लीजिए। मैं आपको नंबर भी दूंगा, उनका कॉन्टेक्ट नंबर भी दूंगा। आप तेजल मैडम मुझे इनसे कनेक्ट करवाइएगा, मुझे सुरभि जी से मुझे कांटेक्ट भी करवाइए, मैं उनको कांटेक्ट नंबर दूंगा उनको, और जो रेफरेंस वगैरह रहता है जो बैंक का, जो सिडबी में जो जनरल मैनेजर है उनका रेफरेंस भी दूंगा, तो वो उनको जाकर रूबरू मिल सकती है उनको, ठीक है ना? तो दैट इज गुड। धर्मेंद्र जी, मैं राजस्थान से हूँ। हाँ, और मैं राजस्थान के सिडबी में गई हूँ। हाँ,
हर साल गई हूँ, ऑनलाइन फॉर्म भी भरा है, और वो बोलते हैं आपका प्लांट एंड मशीनरी 25-50 लाख का होना चाहिए, इन्वेंट्री 50-60 लाख का होना चाहिए, उसमें देखिए रनिंग ऑर्डर्स आपके एक्सपोर्ट के कितने हैं हमको दिखाओ, बैक फोर्थ, उसके बाद में मिलता है लोन। स्कीम इसमें सरकार ने बनाया है पेपर पे, पर हम बैंक वाले जब तक अपना ड्यू डिलिजेंस नहीं करेंगे लोन पास नहीं कर सकते। हाँ सही बात है। अभी क्या है कि देखिए सुरभि, आई वुड से दैट्स क्वाइट, ये तो कोई भी मांगेगा आई गेस। ये जो प्रोजेक्ट प्लान की बात कर रहे हैं, इसमें देखिए मैं आपको बता रहा हूँ सुरभि जी, प्रोजेक्ट प्लान की बात नहीं हो रही है, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, देखिए हाँ जी, ये कॉमन इश्यू है, ये कॉमन प्रॉब्लम है हर एक में। बैंकिंग में क्या है मैडम, मैं आपको बताता हूँ कि अभी क्या है कि लोन लेने जाते हैं, सरकार तो हमको बोलती है कि भी कोलैटरल फ्री लोन वगैरह रहती है, लेकिन बैंक वाले क्या है, बैंक वाले अपना एक सेफर साइड के लिए वो अपने पास वो गारंटी वगैरह मांगती है। अब हम 1 CR का लोन हम लेने जा रहे हैं, कोई भी हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास हम जा रहे हैं, तो वो बैंक वाले तो अपना हिसाब से अपना जो कोलैटरल वगैरह सिक्योरिटी वगैरह मांगेगी। अभी क्या है देखो, कभी अभी हमने लास्ट टाइम एक सेशन में हमने बैंक के जनरल मैनेजर को बुलाया था ये सेशन के लिए, तो उन्होंने बताया है कि अभी हमको कोई भी हमारा जो घर का जो मेंबर होता है वो भी हमको पैसे नहीं देता डायरेक्टली, तो ये तो बैंक है डायरेक्टली बोलते हैं ना कि एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, वो तो हमको पहचानते भी नहीं है, लेकिन ओनली बेस्ड ऑन योर डॉक्यूमेंट्स पेपर्स, उसके बेस पे वो हमको लोन देती है, तो बैंक वाले तो मांगे ही। मतलब ये कॉमन इश्यू रहता ही है मैडम। लेकिन इसमें क्या है मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास गारंटी वगैरह है, हम जेन्युइनली बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो हमको कोई रोकने वाला नहीं है मैडम। ऐसा नॉर्मली क्या होता है कि अगर हमको जेन्युइनली बिजनेस करना है, हमारे पास कुछ भी गारंटी वगैरह है तो प्रोवाइड करें, और नहीं है तो ये CGT MSE करके ये भी हमने लिखा था ये व्हाट्सएप सॉरी मैसेज में, CGT MSE अंतर्गत आपको 1 CR तक का गारंटी फ्री लोन मिल रहा है। आप एक बार फिर से नोट डाउन कर लीजिए, CGT MSE, उसको एक बार अवेल कीजिए आप। CGT MSE सॉरी, C नहीं है, E है, CGT MSE। आरिश बोल। धर्मेंद्र जी, मैं CGT MSE की ही बात कर रही हूँ, सिडबी के अंतर्गत जो मिलता है, मैंने उसी के लिए गई हूँ। प्लस मैं मुद्रा की बात कर रही थी, सारे पब्लिक सेक्टर जिसको मैंडेट है कम से कम महीने के 2 डिसबर्स करने हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड SC ST को, मैं उसी की बात कर रही थी आपसे। आई हैव ऑलरेडी बीन देयर, in fact we made a CMA report from CA also to disburse this loan, but unfortunately ये लोन इतना जल्दी पास नहीं होता है। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है। नहीं तो उसका सॉल्यूशन तो एक बार फिर से जैसे कि बैंक के ऑफिसर्स रहते हैं उनके साथ डिस्कस करके कुछ सॉल्यूशन आ सके, और आपका रिपोर्ट प्रॉपर है, आपका डॉक्यूमेंटेशन सब क्लियर है, तो कोई इश्यू आना नहीं चाहिए, बराबर। क्योंकि हमारा भी यहाँ काफी सारे हमारे जो 2-3 एंटरप्रेन्योर है, उन्होंने मुद्रा का लोन लिया हुआ है, उन्होंने सिडबी जाके भी उनका बेनिफिट लिया हुआ है, तो उनको कोई एज सच कोई दिक्कत अभी आया नहीं है। लेकिन तो अभी एक काम करेंगे, आप मुझे जरा इनसे कनेक्ट करवाइए, मैं रेफरेंस दूंगा हमारे ये जो रीजनल ऑफिस है हमारा यहाँ अहमदाबाद में, उनके भी कांटेक्ट करवा के कुछ हो सकता है, बराबर। एक बार चर्चा करके तो करेंगे, डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन करवाएंगे, ठीक है ना। आप मुझे उनका मेरा मोबाइल नंबर मैं आपको दूंगा मेरा मोबाइल नंबर, मैं आपको रेफरेंस भी दूंगा, तो उसको अपने एनकैश करते हैं डेफिनेटली, ठीक है ना। ओके सर, थैंक यू सर। इसका कुछ सॉल्यूशन लाएंगे हम। क्वेश्चन फ्रॉम मी धर्मेंद्र भाई, CED सिर्फ गुजरात में ही है कि बाकी सारे स्टेट में भी है? जैसे कि आप हो तो वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि हम धर्मेंद्र के पास जाएंगे तो, या तो दर्शक के पास जाएंगे तो वी गेट द क्लैरिटी एटलीस्ट। बाकी स्टेट्स में भी CED रहता है? हाँ मैडम, इसमें क्या है देखिए कि CED इज द ओनली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड इन द 1979 फर्स्ट टाइम। इंडिया में पहली बार CED स्थापित हुआ था। इसके बाद काफी सारे स्टेट्स ने अपने अपने हिसाब से अपने स्टेट्स में लॉन्च किया था, जैसे कि महाराष्ट्र में भी एक महाराष्ट्र CED करके है, महाराष्ट्र सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योर, फिर तमिलनाडु में भी है, फिर एक आंध्र प्रदेश में भी है। तो हर एक स्टेट के अंदर अपना खुद का एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक सेल रहता ही है। उसमें आप लिख लीजिए मैडम, हर एक
स्टेट के अंदर एक इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट रहता है, ठीक है। हर एक स्टेट के अंदर एक आईसी मतलब इंडस्ट्रीज कमिश्नरेट रहता ही है। तो यही ये जो स्कीम्स वगैरह है आपके जो इश्यू है, जैसे कि आप ये सुरभि मैडम राजस्थान से है, तो राजस्थान में ये इश्यू उनको आ रहा है, तो वो इश्यू सॉर्ट आउट करने के लिए भी पर्टिकुलर वहाँ काफी सारे मतलब ऑर्गेनाइजेशन वगैरह रहता है कि भी कुछ सॉल्यूशन लाए या फिर उनको कुछ मतलब कवर अप करे कि भी कैसे करेंगे भाई आगे, कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन आए। तो हर एक डिपार्टमेंट में आप आईसी डिपार्टमेंट और एक एमएसएमई डिपार्टमेंट रहता ही है, बराबर। सीडी हर एक जगह पे नहीं है, कुछ कुछ स्टेट में ही है। मैंने देखा है, मैंने काफी सारा 2-3 वेबसाइट देखा है, जिसमें मैंने अभी तक देखा है कि महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है, एक आंध्र प्रदेश में भी है। लेकिन ये 2 डिपार्टमेंट जो मैं बोल रहा हूँ आपको, एक इंडस्ट्रीज कमिश्नरेट और दूसरा एमएसएमई डिपार्टमेंट, वो हर एक स्टेट के अंदर है, तो उसका आप अप्रोच कीजिए। उसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का एक सेपरेट सेल रहता है। वो एंटरप्रेन्योरशिप का जो सेपरेट सेल रहता है, ये पूरा बोलते हैं ना कि गाइडेंस वगैरह, हैंड होल्डिंग वगैरह, सलाह सूचन वगैरह वो देता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको दूसरे स्टेट में देखो, गुजरात में तो सीईडी है, लेकिन दूसरे स्टेट में आपको एमएसएमई है, फिर अपना ये इंडस्ट्रीज कमिश्नर है, उसको आपको अप्रोच करना होगा। थैंक यू सो मच। या लेट्स मूव ऑन प्लीज। ओके फाइन। तो अभी हम बता रहे थे कि फंडिंग के बारे में काफी सारी हमने बातें की। तो एंटरप्रेन्योरल स्टेप्स जो हमारे हैं, जो स्टेप हम 1 बाय 1 देख रहे थे, जिसमें पहला स्टेप है हमारा आइडिया कंसेप्ट, दूसरा स्टेप हमारा है प्लानिंग, और तीसरा स्टेप हमारा है रिसोर्सेज में हम एक्सटर्नल रिसोर्सेज हम देख रहे हैं अभी। तो जिसमें हमने पहले फंड के बारे में बताया, तो फंड में मैंने काफी सारा डिस्कस वगैरह किया, और फंड में भी आपको कोई भी इश्यू है, कोई भी आपको क्वेश्चन हो, तो सेशन खत्म होने के बाद मैं आपको मेरा ईमेल आईडी और मेरा मोबाइल नंबर दोनों दूंगा, तो वो आप नोट डाउन भी कर दीजिए, मैं आपको दे भी दूंगा। तो आपको कुछ भी गाइडेंस हो, पूछना हो, कुछ भी क्वेश्चन भी हो, तो आप मुझे डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, नो इश्यू, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे फंडिंग के आगे। तो फंडिंग के आगे हम लोकेशन की बात करेंगे। अभी एक मैडम ने मैसेज में बताया था कि लोकेशन, व्हाट अबाउट द लोकेशन, तो अभी हम लोकेशन की बात करेंगे, प्लेस, ठीक है। तो रिसोर्सेज में दूसरा एक इम्पोर्टेंट जो एक अंग है, वो है प्लेस, बराबर, एक पार्ट है प्लेस। तो प्लेस मतलब क्या, लोकेशन। कि हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए प्रॉपर लोकेशन चाहिए। इंटरनल हम बाद में चर्चा कर रहे हैं, पहले हम एक्सटर्नल के लिए चर्चा कर रहे हैं, एक्सटर्नल रिसोर्सेज में। तो एक्सटर्नल रिसोर्सेज में हमने ये फंड देख लिया, और अभी हम देख रहे हैं लोकेशन, ओके। तो लोकेशन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनी बिजनेस, ठीक है ना। लोकेशन हमारा अच्छा होगा तो उसके हिसाब से हमारा बिजनेस भी अच्छा होगा। लोकेशन हमारा अच्छा होगा तो बिजनेस की वायबिलिटी, बिजनेस का मतलब प्रोडक्ट की डिलीवरी, ठीक है, ब्रांडिंग वगैरह अच्छे से होगा। लोकेशन मतलब इट्स वेरी एसेंशियल थिंग। तो लोकेशन मतलब कि लोकेशन क्या होता है कि अगर मुझे कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म खोलना है, मुझे कोई सर्विस सेक्टर का, मुझे कोई शॉप खोलना है, शॉप के लिए मुझे कोई कॉम्प्लेक्स के अंदर मुझे दुकान लेनी है, या फिर मुझे मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो मुझे मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई प्लॉट चाहिए, मुझे जगह चाहिए, बराबर। तो जगह 2 प्रकार की होती है, एक तो गवर्नमेंट का प्लॉट, और दूसरा होता है प्राइवेट प्लॉट। तो हम नॉर्मली गवर्नमेंट प्लॉट में जाना चाहेंगे, भाई गवर्नमेंट के कौन कौन से बेनिफिट्स है वो वगैरह हम जानेंगे। प्राइवेट के लिए तो क्या हम ले ही सकते हैं, कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो वो तो हम खरीद के ले ही सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का बेनिफिट क्या है, ठीक है। लोकेशन के लिए, प्लॉट के लिए हमको गवर्नमेंट की तरफ से हमको क्या बेनिफिट मिल रहा है, तो वो हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताने जा रहा हूँ GIDC। हम गवर्नमेंट प्लॉट की बात करें तो गुजरात की बात करें, जैसे कि हमारे साथ तो काफी सारे स्टेट के अंदर काफी सारे स्टेट्स के वुमेन एंटरप्रेन्योर जुड़े हुए हैं। तो हर एक स्टेट के अंदर अपना खुद का एक इंडस्ट्रियल एसोसिएशन तो रहता ही है, जिसको अपने, जैसे हमारा गुजरात के अंदर गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, वैसे ही महाराष्ट्र में महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, ठीक है। दिल्ली में दिल्ली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। ऐसा हर एक स्टेट के अंदर होता ही है। तो ये गवर्नमेंट प्लॉटिंग, गवर्नमेंट प्लॉट्स कि मुझे बिजनेस करना है, मैन्युफैक्चरिंग फर्म मुझे खोलना है, तो गवर्नमेंट मैं मैन्युफैक्चरिंग फर्म में कहाँ खोलूंगा, तो या तो मैं कोई प्राइवेट प्लॉट लूंगा, या तो कोई गवर्नमेंट का मुझे कोई प्लॉट अवेलेबल है वो लूंगा। तो गवर्नमेंट प्लॉट लेना काफी इजी है, क्यों गवर्नमेंट प्लॉट में लूंगा तो मुझे रोड एक तैयार मिलेंगे,
रोड रास्ता जो है वो तैयार मिलेंगे, गटर व्यवस्था जो सेवरेज जो अरेंजमेंट होती है बराबर सुएज का, वो सब मुझे ठीक मिलेगा, मुझे वहां से पानी का सप्लाई ठीक से मिलेगा, ठीक है, लाइटिंग वगैरह बेसिक जो एमिनिटीज होती है वो मुझे मिलेंगी, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट प्लॉट्स लेने के ये सब फायदे हैं। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि गवर्नमेंट प्लॉट्स कैसे लेने चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट प्लॉट्स हम कैसे लें, ठीक है, गवर्नमेंट प्लॉट्स का हम क्या करें। तो अगर हम गुजरात की बात करें, वैसे ही अलग अलग स्टेट के वुमेन एंटरप्रेन्योर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो अपने अपने जो रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है वहां अप्रोच कर सकते हैं। गुजरात की हम बात करें तो गुजरात में GIDC करके एक डिपार्टमेंट है, आपने सबने नाम सुना होगा, GIDC। GIDC का वेबसाइट भी लिख लीजिए, gidc.gujarat.gov.in, gidc.gujarat.gov.in, ठीक है, gidc.gujarat.gov.in। तो अभी क्या है सिस्टम, अभी ऐसा हो गया है कि अगर मुझे मैन्युफैक्चरिंग फर्म मुझे खोलना है, कोई मुझे इंडस्ट्रियल यूनिट मुझे खोलना है, कि कोई मुझे ऐसा कोई बोलते हैं ना गोडाउन मुझे लेना है, तो मैं क्या करूं, तो मुझे ओनली GIDC में जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है। तो अभी तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आ गया है, तो GIDC में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, तो GIDC में वेबसाइट में जाके उसका ऑनलाइन ऑप्शन रहता है, उसमें क्लिक करके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो कि आपको कितने स्क्वायर फीट का प्लॉट चाहिए और पर स्क्वायर फीट उसका रेट कितना है, क्योंकि गवर्नमेंट प्लॉट है तो काफी रिजनेबल रेट पे उसका प्लॉटिंग रेट वगैरह रहता है। जैसे कि आप देखने जाए कि गुजरात में तो काफी सारी GIDC है, अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में नरोड़ा में GIDC है, नारोल में GIDC है, वस्त्राल में GIDC है, ओके, फिर अपने ये छतराल में GIDC है, ठीक है, नरोड़ा में GIDC है। तो हर एक GIDC अलग अलग है, लेकिन आपको प्लॉट कहाँ चाहिए, ठीक है, आपको प्लॉट कहाँ चाहिए, ठीक है, आपका बजट कितना है, तो उसके हिसाब से उसका प्लॉटिंग का प्राइस वगैरह रहता है। हर एक अलग अलग GIDC के अंदर पर स्क्वायर फीट का भाव के हिसाब से वो लोग मेंशन करते हैं। तो उसमें आपको GIDC का जो वेबसाइट होती है उसमें हम आपको अप्रोच करना होता है। तो GIDC के अंदर ऑनलाइन एप्लीकेशन करके आप ये प्लॉट वगैरह ले सकते हैं। बाकी के स्टेट्स के जो भी वुमेन एंटरप्रेन्योर है वो अपने रिस्पेक्टिव जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है वहां जाके अप्रोच कर सकते हैं, वहां जाके उनको प्लॉट्स वगैरह में क्या प्राइसिंग मिलेगा ये आप ले सकते हो। और गुजरात गवर्नमेंट के प्लॉट्स का बेनिफिट यही है कि गुजरात गवर्नमेंट के प्लॉट है स्पेशली एंटरप्रेन्योर के लिए, स्पेशली मेल और वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए ही बनाए हुए हैं। तो उनको काफी सारे बेनिफिट्स रहता है और उनको काफी सारे रिलैक्स, मतलब उनको जो EMI भरने में भी काफी सारा उनको रिलैक्सेशन रहता है, एकदम इजी रहता है, हफ्ता सिस्टम भी एकदम इजी रहता है, मतलब तो एकदम अच्छा सा एक बोलते हैं ना कि एक एंटरप्रेन्योर एक एनवायरनमेंट सेटअप करने के लिए एक अच्छा बेनिफिट रहता है कि भाई आपको ये गवर्नमेंट प्लॉट काफी नॉमिनल कॉस्टिंग पे आपको मिलता है, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सब वुमेन एंटरप्रेन्योर है, सबने साणंद GIDC का नाम सुना होगा, साणंद वुमेन GIDC। स्पेशली जब आनंदीबेन, ऑनरेबल आनंदीबेन जब CM थे, चीफ मिनिस्टर, तब स्पेशली 200 प्लॉट्स का उन्होंने ये जो साणंद में नैनो का जो प्लांट है, नैनो के प्लांट के पास में ही उन्होंने स्पेशली वुमेन GIDC लॉन्च किया था, आई थिंक समथिंग अराउंड 2016 में, 2016 में, 4 साल पहले। तो काफी सारे वुमेन ने अप्लाई किया था और काफी सारे वुमेन ने वहाँ प्लॉट भी लिया और अभी सक्सेसफुली वुमेन वो बिजनेस चला रही है। हमारे CED में से भी काफी सारी हमारे जो वुमेन एंटरप्रेन्योर है उन्होंने वहाँ प्लॉट्स लिए थे और अभी उनका मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भी काफी अच्छा चल रहा है। तो यही एक बेनिफिट है GIDC का कि आपको एज एन एंटरप्रेन्योर, वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए भी काफी सारे स्टेप्स सरकार ले रही है। उनके लिए ऐसे वुमेन GIDC के प्लॉट्स और भी आने वाले हैं इन फ्यूचर, तो वो आप उसका भी आप ध्यान रखें। और मैंने जैसे आपको पहले आपको मैंने बताया कि गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, गवर्नमेंट के जो न्यूज़पेपर है वो आप खास पढ़ते रहिए, उसके अंदर ये प्लॉटिंग्स वगैरह का स्कीम्स वगैरह सब इंफॉर्मेशन आती रहती है, तो वो आपके भी ध्यान में हो, आपको पता चले तो आप उसका बेनिफिट भी ले सकते हो, ठीक है। तो प्लॉटिंग की बात की, लोकेशन की, बाकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है, वहां भी आप दुकान वगैरह ले सकते हो, ठीक है। सरकार आपको जमीन के लिए आपको पैसे नहीं देती, जमीन के लिए आपको लोन वगैरह नहीं देती, सरकार आपको प्लांट एंड मशीनरी के लिए ही लोन देती है, नॉट फॉर लैंड, ठीक है ना।
ये आप बात ध्यान में रखिए। मैंने आपको जो ये जो पहले स्कीम बताई है, दैट इज फॉर प्लांट एंड मशीनरी। आपको प्लांट एंड मशीनरी, पूरा प्लांट बनाना है, मशीनरी सेटअप करनी है, मशीनरी लानी है, उसके लिए आपको लोन बेनिफिट मिलता है, बराबर। दूसरी हमने ये लोकेशन की बात करी है। लोकेशन में जीआईडीसी प्लॉट के अंदर जो भी प्लॉट्स अवेलेबल है वो आप ऑनलाइन अप्लाई करके आप वो अवेल कर सकते हो। बाकी के स्टेट्स के एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा कि उनका जो रिस्पेक्टिव, उनका जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है वो आपको ये बेनिफिट देगा, उसके लिए आप बराबर कर सकते हो। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम अभी हमको डिस्कस करना है, दैट इज फॉर रजिस्ट्रेशन। हम बिजनेस करने तो जा रहे हैं, लेकिन बिजनेस का रजिस्ट्रेशन तो करना पड़ेगा ना। जैसे कि आप अपना खुद का बिजनेस, आपको आइडिया आ गया, आइडिया आया और आपने बिजनेस शुरू करने का शुरू किया, तो आपके पास एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो दिस इज फॉर ऑल वुमेन एंटरप्रेन्योर थ्रू आउट द इंडिया। हमारे साथ जो भी जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि एक उद्यमी रजिस्ट्रेशन रहता है। आप ऑल ऑफ यू प्लीज नोट डाउन, उद्यमी रजिस्ट्रेशन। इंक्यूबेशन की हम बाद में बात करेंगे, आप मुझे याद करवाइए इंक्यूबेशन के लिए। आप लिख लीजिए उद्यमी रजिस्ट्रेशन। उद्यमी, उद्यमी मतलब एंटरप्रेन्योर, उद्यमी रजिस्ट्रेशन। हम बिजनेस करने जा रहे हैं, हमको कोई भी बिजनेस करना है तो हमारा एक खुद का एक रजिस्ट्रेशन तो होना चाहिए ना। जैसे एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया आपका, मेरा, सबका एक आधार कार्ड है, तो वैसे ही उद्योग का भी एक उद्योग आधार नंबर होता है। क्या बोलते हैं उसको? उद्योग आधार नंबर। उस दूसरा बोलते हैं एमएसएमई नंबर, और उसको उद्यमी रजिस्ट्रेशन नंबर भी बोलते हैं। ऑल ऑफ यू प्लीज नोट डाउन, जब भी आप बिजनेस करने जा रहे हो उसका रजिस्ट्रेशन खास करें, उसको बोलते हैं उद्यमी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, उसका उद्यमी रजिस्ट्रेशन आपको लेना है ऑनलाइन। ऑल ऑफ यू प्लीज नोट डाउन, यू हैव टू जस्ट रजिस्टर योरसेल्फ थ्रू ऑनलाइन सिस्टम ओनली, थ्रू दिस वेबसाइट उद्यमी रजिस्ट्रेशन। आपको गूगल में उद्यमी रजिस्ट्रेशन डालिए, आपका एक गवर्नमेंट का वेबसाइट आएगा, उसमें आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। दैट इज ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई पैसा नहीं है, रजिस्ट्रेशन फीस कोई नहीं है। ठीक है, यस, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो डॉक्टर आचार्य ने जो लिखा है वेबसाइट लिंक, तो वो आप ऑल ऑफ यू प्लीज नोट डाउन। तो उद्यमी रजिस्ट्रेशन दैट इज ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट। एक गवर्नमेंट के अंदर हम बिजनेस करने जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट को पता तो होना चाहिए ना कि भाई ये बंदे ने बिजनेस शुरू किया है, करने जा रहा है, कुछ भी है। ठीक है, तो उद्यमी रजिस्ट्रेशन आगे जाके आप जब बिजनेस का कोई बेनिफिट लेने जा रहे हो, कोई गवर्नमेंट का कोई स्कीम का बेनिफिट लेने जा रहे हो, तो वहां आपको ये बहुत ही उपयोगी, आपको बहुत ही यूजफुल रहेगा उद्यमी रजिस्ट्रेशन। तो ऑल ऑफ यू प्लीज नोट डाउन, उद्यमी रजिस्ट्रेशन इज अ वेरी कंपलसरी। ठीक है, फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइन, तो हमने देखा फंड, देखा लोकेशन, देखा लोकेशन के अलावा बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए, कोई बता सकता है? बायर रिसोर्सेज के अंदर और क्या क्या होना चाहिए? बायर रिसोर्सेज के अंदर और क्या क्या होना चाहिए? फंड आ गया, लोकेशन आ गया, मतलब प्लॉट आ गया, जमीन आ गई, और क्या चाहिए बिजनेस के लिए? लेबर, वेरी गुड। मैन पावर, मैन पावर चाहिए। मैन पावर कहाँ से लाएंगे आप? मैन पावर हम रेफरेंस से लाएंगे, एडवर्टाइजमेंट करके लाएंगे, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से लाएंगे। ठीक है, यहाँ से लाएंगे। और क्या चाहिए? मशीनरी, प्लांट्स, टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, मशीनरी, रो मटेरियल, यस वेरी गुड, रो मटेरियल चाहिए हमको। ठीक है, रो मटेरियल, मशीनरी, इक्विपमेंट्स। ठीक है, मैन पावर। और क्या चाहिए बिजनेस के लिए? ओके, मतलब बेसिक एमिनिटीज, बेसिक एमिनिटीज, यस बराबर है, नेटवर्किंग वगैरह, ये सब स्किल्स है। नेटवर्किंग वगैरह ये सब स्किल्स है, उसको सॉफ्ट स्किल बोलते हैं हम, जो हमारे अंदर चाहिए। हम बायर रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन, यस, कोऑर्डिनेशन इज आल्सो वन काइंड ऑफ इंटरनल स्किल, कोऑर्डिनेशन है, बराबर। तो ये हमने आपको बताया कि पूरा बेसिक एमिनिटीज, हमको रोड चाहिए, रास्ता चाहिए, लाइट्स चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ठीक है, मैन पावर चाहिए, पैसे चाहिए। ठीक है, लोकेशन चाहिए, मतलब जमीन चाहिए, मशीनरी चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पूरे बायर रिसोर्सेज है। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल रिसोर्सेज। अभी हम बात करेंगे इंटरनल रिसोर्सेज की, जो हमारे अंदर है।
अभी हमने क्या चर्चा किया था, डिस्कशन किया था बायर रिसोर्सेज, अभी हम डिस्कस करेंगे इंटरनल रिसोर्सेज, ठीक है ना। तो ऑल ऑफ यू प्लीज नोट डाउन, अभी हमने एंटरप्रेन्योर स्टेप्स की हम 1 बाय 1 चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें हमने सबसे पहले देखा आइडिया, सेकंड प्लानिंग यानी कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट, थर्ड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में 2 टाइप के रिसोर्सेज है, एक एक्सटर्नल है और दूसरा है इंटरनल। एक्सटर्नल की चर्चा हमने कर दिया डिस्कशन, अभी हम करेंगे इंटरनल। तो इंटरनल मतलब क्या, एज ए एंटरप्रेन्योर हमारे अंदर क्या होना चाहिए, बताइए। एज ए एंटरप्रेन्योर हमारे अंदर क्या होना चाहिए? ओके फाइन, जज्बा, इंटरनल डिजायर, बर्निंग डिजायर, ठीक है ना। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, डेयरिंग, यस वेरी नाइस, डेयरिंग, साहस, कॉन्फिडेंस, वेरी गुड, और स्किल, वेरी नाइस, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, पैशन, वैल्यू, एथिकल, यस वेरी नाइस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पेशेंस चाहिए, यस, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के हमको बेनिफिट लेने हैं, तो मतलब पेशेंस भी होना चाहिए। 10 दिन भी लग जाएंगे, 20 दिन भी लग जाएंगे, 25 दिन भी लग जाएंगे। गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग, यस वेरी नाइस, यस। जुगाड़ू मतलब हमको मतलब प्रोसेस फॉलो करना है, पेशेंस के साथ फॉलो करना है, कंसिस्टेंसी हमको लेनी है, यस वेरी नाइस, गुड। रिस्क टेकर, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, वेरी नाइस, रिस्क टेकिंग एबिलिटी हमारी होनी चाहिए, वेरी नाइस। और एटीट्यूड, स्किल एंड नॉलेज, कॉम्पिटिटिव स्किल, मार्केटिंग स्किल्स, वेरी नाइस, वेरी गुड। एटीट्यूड, स्किल एंड नॉलेज, AS के आप ये 3 पॉइंट लिख लीजिए। विजन, वेरी नाइस, विजन वेरी नाइस, विजन मिशन, विजन एंड मिशन होना चाहिए, वेरी नाइस, वेरी गुड। कम्युनिकेशन स्किल्स, यस गुड। इंटरपर्सनल रिलेशन स्किल, हमको बात करना, बात मनवाना, मैनेज करना आना चाहिए, वेरी नाइस, गुड। लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, वेरी नाइस। टीम बिल्डिंग क्वालिटी होनी चाहिए। अगर मैं पीपल्स मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए। आज मैं कुछ कर रहा हूँ, मेरा एक लेबर मेरा नहीं आया, आज एब्सेंट है, तो मैं खुद बैठ के मैं कुछ मशीन चालू कर लूं। ऐसा नहीं है कि मैं बॉस हूं तो मैं नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ चेयर पे बैठे बैठे ऑर्डर दूंगा, ऐसा नहीं होता। बिजनेस में अपनों को खुद को भी करना पड़ता है, साथ में एक टीम बिल्डिंग एबिलिटी हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है ना। वेरी नाइस। एटीट्यूड, skill and knowledge are the very important part of this particular soft skills, ठीक है ना। जो हमारी जो इंटरनल स्किल्स होती है उसमें एटीट्यूड एक प्रोएक्टिव होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। प्रोएक्टिव मतलब एक्टिव से भी एक स्टेप आगे है, प्रोएक्टिव। अभी हमने बोला कि भाई विजन एंड मिशन, तो विजन क्या है और मिशन क्या है, कोई बताएगा? विजन किसको बोलते हैं? विजन मतलब क्या, विजन क्या है और मिशन क्या है? विजन मतलब लॉन्ग टर्म स्टेटमेंट, विजन मतलब लॉन्ग टर्म, हमारा प्लानिंग क्या है, यस, हमारा पर्पस, हमारा विजन मतलब रहता है लॉन्ग टर्म, यस, वेयर यू कैन समथिंग इन द लॉन्ग टर्म। आज मैं सीईडी को कैसे देखना चाहता हूं, मैं सीईडी को एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड के अंदर मैं सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस बनाना चाहता हूं, दैट इज माय विजन। और मिशन किसको कहते हैं? मिशन मतलब क्या, यस, विजन मतलब लॉन्ग टर्म गोल्स, एग्जैक्टली, वेरी नाइस। और मिशन क्या होता है? मिशन किसको बोलते हैं? MISSION, मिशन क्या होता है? मिशन मतलब हम शॉर्ट टर्म में, यस, मिशन मतलब ये विजन अचीव करने के लिए मैं नेक्स्ट 2 साल 5 साल में मैं क्या क्या करूंगा मेरी कंपनी में, जो मैं ये अचीव कर पाऊं, ये विजन अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स वगैरह, यस, वेरी नाइस, बराबर। मैं शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में मैं क्या करना चाहता हूं, मैं ब्रांच ऑफिस खोलना चाहता हूं, मैं दूसरे मशीनरी लाना चाहता हूं, मैं स्टाफ में 2-5 लोगों की बढ़ोतरी करना चाहता हूं, मतलब विद इन अ शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में मैं क्या करना चाहूंगा, उसको हम बोलता है मिशन, ओके, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका अप्रोच जो होता है प्रोएक्टिव होना चाहिए, आपके दिमाग में विजन,
मिशन, ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए, आपके अंदर एक स्किल होनी चाहिए। आपने लिज्जत पापड़ का एग्जांपल आपने तो अच्छा सा सुना होगा, लिज्जत पापड़ हमारा है, क्योंकि लिज्जत पापड़ आपको पता होगा कि 7 से 8 7 to 8 एकदम बोले इलिटरेट वुमेन जिन्होंने स्टार्ट किया था लिज्जत पापड़, लेकिन उनके पास एक स्किल था। स्किल कौन सी स्किल थी? कुकिंग स्किल। उनके पास खुद का एक कुकिंग स्किल था कि चलो अपने कुछ बनाते हैं, कुछ खाने पीने के आइटम बनाते हैं, तो हम भी सक्षम होंगे, हम भी कैपेबल रहेंगे, हमारे बच्चों को भी अच्छी स्कूल में पढ़ाएंगे, हमारे हस्बैंड को भी हम हेल्प करेंगे। तो एक बिजनेस उन्होंने शुरू किया पापड़ बनाने का, वो भी अपने एक मैन्युअली अपने एक पापड़ बनाने का शुरू किया। तो देखिए 1955 में जो कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी लिज्जत पापड़ श्री महिला गृह उद्योग, अभी आज there are 45,000 women working in the company in Lijjat Papad, and the approximate turnover of this company is around rupees 750 crore. 750 rupees करोड़ का टर्नओवर है कंपनी का। तो देखिए तो कहाँ है, मतलब 7 से 8 इलिटरेट वुमेन ने जो लिज्जत पापड़ का बिजनेस शुरू किया था, वो आज अभी देखिए कहाँ है। तो दैट इज ओनली बड़ा अप टू दैट, उनका जो जज्बा था, उनके अंदर जो बर्निंग डिजायर थी, उनके अंदर एक बोलते हैं ना कि एक एटीट्यूड था, प्रोएक्टिव एटीट्यूड, एक टीम लीडिंग एबिलिटी, ठीक है, इनोवेशन था, उनके पास एक स्किल थी, तो वो अचीव करके ये बिजनेस उन्होंने अचीव किया। हमारे आप गुजरात की बात करें, अहमदाबाद की बात करें, जसूबेन ना पिज्जा, जसूबेन के पिज्जे की हम जसूबेन के जो पिज्जा होते हैं वो है। फिर अपने ये ऑनेस्ट भाजी पाव की बात कर रहे हैं कि वो भी कौन थे? उसके अलावा मैं आपको एक अहमदाबाद के एक वुमन एंटरप्रेन्योर है रशीशाबेन रबारी, उन्होंने अपना एक खुद का एक बोलते हैं ना कि योगा कैफे करके शुरू किया है। ये योगा कैफे करके एक बिजनेस शुरू किया है। उसमें वो क्या है कि डाइट फूड सप्लाई करते हैं, टिफिन सर्विस में डाइट फूड। तो ये आप देखिए, ये कंसेप्ट देखिए आप, मतलब टिफिन सर्विस तो हम करते ही है, लेकिन इन्होंने डाइट फूड सप्लाई करने का शुरू किया। मतलब एक हाइजीनिक फूड, एक डाइट फूड का एक पूरा एक बोलते हैं ना कॉम्बो पैक, उन्होंने वो कॉर्पोरेट्स में, ऑफिसेज में उन्होंने वो सप्लाई करने का चालू किया। रशीशाबेन रबारी करके है योगा कैफे करके। हमारे सीडी के वुमेन एंटरप्रेन्योर की मैं 3 से 4 एग्जांपल में दूंगा। तेजल मैडम ने सेशन के स्टार्टिंग में ही एक रोटी मेकिंग यूनिट की बात की। तो हमारे एक महिला एंटरप्रेन्योर है, वुमेन एंटरप्रेन्योर, जिनका नाम है मीनाबेन शर्मा। मीना शर्मा जी ने 2.5 साल पहले अपना खुद का एक रोटी मेकिंग यूनिट शुरू किया। उन्होंने ये PMEGP, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम है, उसका बेनिफिट लेके उन्होंने एक वुमेन एंटरप्रेन्योर एक रोटी मेकिंग यूनिट शुरू किया। तो आज उनका काफी सारा इन्वेस्टमेंट वगैरह काफी बढ़ गया है, उनका टर्नओवर भी अच्छा है, और आज उनका ये जो मंथली इनकम भी काफी है। और वो भी वो रोटी आई थिंक मैं आपको बताऊं कि दिन की टोटल 10,000 रोटीज वो बनाती है। अपने जो रोटी मेकिंग मशीन जो है उसमें से मोर देन 8,000 मतलब अप टू अराउंड 10,000 रोटीज वो बनाती है, और वो पूरा सप्लाई करती है अलग अलग इसमें, ठीक है ना। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ इसीलिए कि वुमेन एंटरप्रेन्योर के पास काफी सारी क्वालिटीज है, गवर्नमेंट के काफी सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बेनिफिट लेना चाहिए, ठीक है। तो इंटरनल रिसोर्सेज की भी हमने काफी सारी चर्चा की। अभी हम 4th स्टेप में जाएंगे, जो हमारा चौथा स्टेप बिजनेस का है, वो है एक्चुअलाइजेशन। ऑल ऑफ यू प्लीज नोट डाउन एक्चुअलाइजेशन मतलब आपका बिजनेस शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया। और 5वां और लास्ट स्टेप जो है दैट इज हार्वेस्टिंग। हमें अपने बिजनेस को मेंटेन करना है, बिजनेस को हमको मेंटेन करना है, बिजनेस को हमको एक्सपेंड करना है, दैट इज अवर हार्वेस्टिंग। तो हमने ये एंटरप्रेन्योर स्टेप्स हमने देखे 1 by 1, हर एक स्टेप आपको यूजफुल होंगे आपको, और यही प्रोफेशनल सिस्टम के हिसाब से, यही आपको स्टेप के हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। सबसे पहले एक बार फिर से रिपीट करें, फर्स्ट स्टेप है कंसेप्ट, सेकंड स्टेप है प्लानिंग, थर्ड स्टेप है रिसोर्सेज जिसमें एक्सटर्नल रिसोर्सेज, इंटरनल रिसोर्सेज, फोर्थ स्टेप है हमारे एक्चुअलाइजेशन,
और 5वां और लास्ट स्टेप है हमारा हार्वेस्टिंग। तो दिस इज अ वेरी गुड 5 स्टेप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर स्टेप्स। तो आप देख लीजिए और इसके हिसाब से आपको आगे जाना है। तो अभी हमारे पास लास्ट के कुछ मिनट्स है, हम क्वेश्चन आंसर करना चाहेंगे। हमारे काफी सारे वुमेन एंटरप्रेन्योर ने ये मैसेज में भी लिखा था, जैसे कि पेटेंट का वगैरह लिखा था, ब्रांडिंग का भी लिखा था, कुछ सोलर का भी लिखा था। तो हम 1 बाय 1 सभी के साथ हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और मैं आपको मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी दूंगा, मेरा ईमेल आईडी भी दूंगा, तो आप मेरे साथ भी डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में रह पाए और कुछ भी सॉल्यूशन उसका कुछ आ पाए। तेजल मैडम प्लीज। Thank you, Dharmendra bhai. It was indeed a useful session, not doubt about it. I think बहुत सारी information मुझे भी काफी मिली है. Guys, it is really important for all of us to understand this. ये सिर्फ शेड्यूल कास्ट और उन सब के लिए ही नहीं है. सरकार श्री ने हमारे लिए बहुत कुछ सोचा है, लेकिन ये शायद हम उनको समझ नहीं पा रहे हैं और ना ही हम उनका यूज कर पा रहे हैं. I genuinely encourage everyone for that matter कि ये जो schemes हैं, government की schemes हैं, especially for fundings, especially for locations, especially for registration, please उनको समझें. We all are literate enough to read the website and वहां से हम information लेके इस योजना का लाभ ले, बिकॉज गवर्नमेंट ने हमारे लिए एक फंड साइड में रखा हुआ है. अगर हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं तो इट माइट गेट कहीं और चला जाएगा, विच वी डोंट वांट दैट, है ना. तो हम और फिर हम लोग फिर गवर्नमेंट को ही बोलेंगे कि भाई गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है ना. सो प्लीज डोंट डू दिस. अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, धर्मेंद्र भाई, द एंटायर सीईडी टीम, दे आर ऑलवेज ओपन टू हेल्प. कुछ भी हो, हमने मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है. यू कैन गेट इन टच विथ मी, यू कैन गेट इन टच विथ पियाली. अगर धर्मेंद्र सर बिजी हैं, जवाब नहीं दे रहे, तो वी मेक श्योर दैट धर्मेंद्र सर व्हेनेवर ही इज फ्री ही कैन गेट इन टच विथ अस. इवन प्रसाद सर, जो इन सबके जो हुज हेडिंग सीईडी, ही इज सच अ हम्बल पर्सन एंड इतना अच्छी तरह से हम लोग डेफिनेटली उनको इन्वाइट करना चाह रहे हैं हमारे लास्ट सेशन पे, क्लोजिंग सेरेमनी में. आप उनको सुनेंगे. ही इज सच अ हम्बल पर्सन एंड हमारे लिए उनका एक विजन है जो शायद हम ही फुलफिल कर सकते हैं. सो थैंक यू धर्मेंद्र जी. एंड विद दिस आई एम ओपनिंग क्वेश्चन आंसर सेशन फॉर Dharmendra, Piyali, and for myself. Please go ahead. You can mention in the chat. Piyali, would you come also, please? Thank you, Piyali. Yes. Dharmendra ji, आपको कोई एक क्वेश्चन, any compulsory registration? हाँ, हमारे पास एक 2-3 क्वेश्चन. यस, एक्सपोर्ट के लिए मैं आपको बताऊं कि there is one government website. All of you please note down. That is for export import registration, as well as if you have any query regarding export and import business, you can just kindly contact them. That is basically a government authority. You please note down. That is a FIEO, Federation of Indian Export Organization. FIEO. Dot. FIEO, Federation of Indian Export Organization. This is basically a government department working under the aegis of Ministry of Commerce and Industry. FIEO does, yes, exactly, FIEO. And there is one person who is taking care of overall Gujarat West zone. Mr. Jaiprakash Goyal is there. If you need his contact details, I will let you know. I will definitely send it to you. You have my contact number. You can just contact me or call me for further guidance. But this is a website. If you have any query regarding export import, regarding any export import registration, you can just click this website. That will be more helpful to you. Okay, ladies, with this, I'm sharing this WhatsApp link. Anybody who want to join, please join in. Dharmendra ji, if you also can join, so that if they have any question later on, this is a temporary group. We can once we all. Sure, definitely. That will be good. Actually, WhatsApp group that will be more nice, because if you have any question, you can just submit your question to the group. Matlab, we will let you know. Yes, definitely. That's right. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. Bye bye. Thank you, Dharmendra ji. Thank you so much for your time. Thank you so much. And we really appreciate आपने जो भी information दी इसके लिए. बहुत बहुत धन्यवाद.
Thank you. Ladies will stick for another 5-7 minutes, please. Thank you. Everybody is thanking you, Dharmendra bhai. Thank you. Thank you. Yes, ladies. I think काफी अच्छा था, बहुत समझने की चीज है. मैं बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव कर रही हूँ कि ये जो सारी स्कीम्स हैं, वो स्कीम हम समझें, उनका हम सही तरह से उपयोग करें. Yes, definitely, as Dharmendra ji rightly mentioned, के बहुत सारा पेपर वर्क है, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स होंगे, but that's where the project report and हमारा जो कैनवास वगैरह है, that would help, जो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं. कल का जो हमारा है, पियाली ने बताया कि कस्टमर सेंट्रिक एक पूरा अप्रोच होगा. So I think that would definitely help. Yes, if you like the WhatsApp, मैंने link डाली है, please join that WhatsApp group, and I will share Dharmendra bhai's phone number and email, and you are most welcome to get in touch with him. Right? Any questions for me and Piyali? I think Dharmendra bhai has left the group. Tejan, did you say that you're sharing the link here on the chat? Yes, I already did. I didn't see. That's why I was reconfirming. Okay, I'll do it again. Yes, please. अच्छा, क्योंकि मैंने भेजा वो धर्मेंद्र भाई को ही सिर्फ गया, इसलिए. Oh yeah, probably about the time and all. So okay, now can you all see the link? Yes, it's there now. All right, Piyali, you are already in. You are already there in that group. Yeah, do we have any other points, Tejal? Otherwise, of course, we can close and we need to show about the CD. So if anybody doesn't have any question or something, maybe I can share that video with you all. Yeah, maybe you can. How long is the video? You could probably start in that case. Yeah. Just conscious of time, maybe we can first have the video then. Yes. Can you see my WhatsApp? Yes. Somebody's asking on the chat box because I have shared my screen, so I won't be able to. One minute, huh, guys. My internet is really very, it's giving me a great trouble. Usually it's not, but मैं अपना वीडियो बंद कर दूं, ऐसा करूं? I guess that should help. Piyali? Teju, tell me. How's your internet performing? You can send me an email. I can definitely. Yeah, I have sent you WhatsApp. It's a link. Okay, 2 minutes. And if you could share your screen in that case, please. I'm sorry about it. No problems. Acha, so you have WhatsApp web or? No, I'll have to go on the laptop only. I generally don't keep it there. 1 second.
Just 1 second. Let me stop. Yeah, I have not shared my screen. Okay, fine. Yeah. I'm just sharing and seeing now if it's working or not. Yes. We can see that. Can you see? Yes, we can. Okay. Now there is no sound maybe, so you might have to check on that. Can you increase the volume, please? It's highest actually. Okay. And if you could just full the screen. Piyali, I'm not able to understand or see anything. I don't know about the participants. Sorry, Tejal, what are you saying? No, we are not able to see or use this link. That's okay. We'll share this link on WhatsApp. That's okay. Absolutely. I think we'll do that. Sorry, I did not realize that it has not been seen. No, that's okay. That's okay. Okay. That's okay. Let's we'll share all the videos on the WhatsApp group that we have made. So if you have not joined the WhatsApp group, please do so. Yes. Any questions? Anything that you want to share, guys? Floor is open for you all. Piyali, you might have to switch off the Facebook Live, maybe. Yeah, I can do that now. Yeah. Yes, anything? We have 4 minutes. I think we can close Tejal, and I've made a note that the templates, the template for creating a project, some of the contact details, and probably a few of the links that he was mentioning. What we will do is we will reach out to Dharmendra Bhai, get all of it together, and then share it with all of you on email or WhatsApp, depending on how we are getting it from him. Fantastic. Yes, we are sending it to you now. So Vaishali, please join us on WhatsApp. If you have not, please do so. Right. So thank you. Piyali, this question is for you. Megha is asking this question. What's the question? Can I tag you guys on social media and post about American Corner? You're most welcome. And TIE anyways was on. TIE Ahmedabad is the page. You can definitely tag. And American Corner Ahmedabad is our page. Please share the link again, okay? Okay, here's the link for WhatsApp, guys. Okay, we are here for 1 more minute and then we'll end the session. Guys, I would request you all have to leave the meeting. If we remove you, then you won't be able to join tomorrow. Yes. So yes, the other day we had to remove one because somebody kept the session on and कुछ रोटी वोटी बनाने चले गए थे ऐसा लग रहा है मुझे तो we might have we might want to remove you in this case. Thank you so much and we'll see you sharp at 10:50 tomorrow. Very much. Thank you. Thanks everyone. Stay safe. Have a good afternoon. Thank you so much.
question. Yes. So if I'm a participant, can I record the session? No, participants don't. So what happens is, as a host, you have the rights to give to participants whether they can record or not, whether they can put it live or not, whether they can from the screen or settings. not. So these are the privileges which you can decide as a host. अच्छा वो settings में जाके करना पड़ता है क्या? So if you are a co-host, you will practically have all the privileges that I would have decided on the account for this session. Okay. Vanita ji, Hem, Dr. Acharya, you might want to leave the session, please. So, Tejan, for tomorrow, we'll begin with the business strategy with Haripriya, which is going to take her 30 minutes of her talk on the financial plan and then the importance of the business strategy and everything. That would actually make it a good holistic view of all that we have done in these 2 days. Yeah. And then maybe another 10 minutes of Q&A. We will have to do it at the end of it itself. Sure. And after that, we have Dr. Megha, and Megha will for sure need 1 hour, which means tomorrow's will be practically packed. Now, with Megha, I have told her she's going to pick up from a design thinking perspective the pitching part of it a little bit, and I've told her to pick up either 1 or 2 components from the business model canvas to show how the design thinking approach is applied in it. So first priority is the customer segmentation, because that is the, you remember the topic we had spoken to her was about generating business leads. Yes. That's why. So customer segmentation is the most important. So pitching is of course a holistic of everything. So she's going to spend a little time on pitching that she kind of learned at IIT, and then followed by customer segmentation as the main topic. I have told her to think over it. If she has time enough to pick up 2 components, then the second one will be the different channels that you are using for your business, because a combination of these 2 will define how much of your, the business generation or the sales leads generally. Right. So that is what we have for tomorrow. Okay. So I think you might have to end the meeting, because him and Vanita Prasad is not. So anyway, I'll end the meeting. So whenever they get. Yeah, you end the meeting. Yeah. All right, see you tomorrow. And but tomorrow we'll probably have to start literally latest by 11:05. Yeah, of course. We will start. We'll mention it in the WhatsApp group that we'll start at 11:05. So whomsoever they want to join, they can join us. Perfect. Okay.